Also, art and yoga are a pathway for self-discovery. In yoga, also we balance our body and mind, and art also you express your soul, you express your अच्छा mind. लगता है जब हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बड़ी, तो हम भी खुद को फॉर्च्यूनेट इनफ मानते हैं। मिस्टर हार्दिक पांड्या को ट्रेन करने की बात ऐसे हुई कि इट वाज़ 1st ऑफ जनवरी 2024 लास्ट ईयर। तो तब मुझे एक अचानक से कॉल आता है कि आप करण बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ, बोल रहे हैं। तो एक योग ट्रेनर की ज़रूरत है। मैंने बोला ओके, करेंगे ट्रेन, सबको करते ही हैं फिज़िकल ट्रेन को ऑफर के जाते ही हैं। Yeah. तो उन्होंने बोला कि ओके हार्दिक पांड्या है, उनको ट्रेनिंग देनी। मैंने बोला ओके, दैट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसे मौके मिले हैं बड़े-बड़े, जो लोगों को शायद सालों निकल जाते हैं, जीवन भर निकल जाते हैं और नहीं मिल पाते। अब वो मेरे पास्ट कर्मा इसी लाइफ के हैं या जैसे आपने कहा पिछली लाइफ के महान व्यक्ति के, महान आत्मा के अगर ब्लेसिंग्स मिल चुके हैं 2 चीज़ों को लेकर, आर्ट और योग दोनों को, हम तो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं छोड़। ऐसा नहीं कि योग हमें कहता है कि ऐसा मत करो, योग हमें कहता है कि कनेक्टेड रहो, लेकिन अटैच मत रहो। Art and yoga are a pathway for self-discovery. In yoga, also we balance our body and mind, and art also you express your soul, you express your mind. And today I want to welcome all of you to a brand new podcast at Anand Yatra podcast channel, which is a channel which takes you to the journey of people, their true life changing story, which can change your body, mind, and soul. So today I want to welcome today's new guest and a special guest, Karan Ganatra sir, to our Anand Yatra platform. How are you, sir? कैसा महसूस कर रहे हैं करण भाई? I'm good. How are you, Ashish ji? I am also good in your presence, or I hope today it's going to be really great conversation with between us. Okay, so Karan is a yoga therapist as well as a creator of Advait Yoga Studio, and he's an artist as well as a yoga coach, and he's teaching yoga to so many people and creating a wellness in these people's life so that they can also enjoy the beautiful and the taste or the joy of the life. So today I will not say much. I will leave it on to Karan sir. Like he will take us all to his joyful journey. Karan sir, I would like to start our today's podcast with a question. You describe yourself like how was your childhood and how your journey taken into art and yoga. Well, you have already given a basic introduction. That is all that we need in general. More we can know about each other when we start discussing or when we start spending time together. That is only when we really get to know people. Recently, I was looking at a video which was showing creatures or organisms that are living under the water. So deep under the water, which is like 200 feet, 300 feet down, deep, the ocean, they are saying that we still don't know what is going on in the oceans, what kind of creatures are coming up, what kind of organisms are living or being created. Similar is the human mind also, humanity also. We don't know what is going deep inside the mind and what a person truly is. We cannot actually claim that we know ourselves or I know this person completely, because human mind is same like an ocean, deep, dark, unexplored, unimaginable. So ना तो आप पूरी तरह से मुझे जान पाएंगे, ना तो मैं आपको पूरी तरह से जान पाऊंगा कभी भी. So that is the thing. लेकिन बेसिक Wow. इंट्रोडक्शन में कहना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया आर्टिस्ट हूँ मैं, ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स से किया है, और जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता गया, थोड़ा डाइवर्ट तो नहीं कहा मैंने, लेकिन कहूँगा, लेकिन साथ साथ दूसरे फील्ड को भी मैं कनेक्ट करना चाहूँगा जो है योग. तो उसी को साथ कनेक्ट करने के लिए मैंने मास्टर्स इन योग थेरेपी भी किया एसगासा बैंगलोर से. यस, आई Wow. लाइक बोथ द फील्ड्स इक्वली, और मेरा यही अप्रोच रहा है कि दोनों को किस तरह से
साथ में कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ा जाए। Wonderful. So, would you also take us to your journey, like how this journey started, like how you went into that art field and then you shifted to yoga, like you said, you are following these both fields together. तो मैं जानना चाहूंगा ये यात्रा कैसे शुरुआत हुई और किस तरह से आपने चूज किया और ये यात्रा क्या बचपन से ही शुरू हुई या इज इट कॉन्शियस प्रोसेस यू चोजन और इज इट लाइक कि कुछ लोग की यात्रा खुद ब खुद होती है हम चलते जाते हैं बस और इज इट लाइक दैट? यस, इट इज लाइक दैट। शुरुआत ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने सोचा बैठा और कि ओके आज से मुझे आर्ट शुरू करना है, आज से मुझे योगा शुरू करना है, ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले से ही मेरी कोशिश यही रही है कि जो लाइफ मेरी तरफ भेज रही है चीज़ों को, उसे एनालाइज थोड़ा बहुत किया जाए और फिर उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए। क्योंकि बचपन से ही मैंने देखा है, पढ़ा है, सुना है कि कॉस्मोस की बात करते हैं, यूनिवर्स की बात करते हैं, वो हमारी तरफ वही चीज़ें शेयर करते हैं या वही चीज़ें हमारी तरफ भेजते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। शायद वाह। वही हमारा पर्पस है, तो वही चीज़ें हमारी तरफ भेजते हैं। तो मैं जानबूझकर ये सोचकर बैठूं कि मुझे ये फील्ड में जाना, तो वर्कआउट ना करा फिर मैं टर्न हो जाऊं, या उससे अच्छा लेट थिंग्स कम टू मी एज इट इज। आई विल सी हाउ आई गेट कंफर्टेबल विद इट एंड जस्ट गो अलोंग विद इट। तो आर्ट की बात करेंगे तो पहले से बचपन से पेरेंट्स आर्ट क्लासेस में, हॉबी क्लासेस में भेजते हैं, तो वहीं से इंटरेस्ट शुरू हो गया और बस वही कंटिन्यू रहा और उसी को एज अ प्रोफेशन, एज अ हायर स्टडीज कंटिन्यू कर लिया। वो तो चल ही रहा है, साथ साथ योग ऐसा फील्ड है कि जो हम सिलेक्ट नहीं करते, योग हमें सिलेक्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस कि कोई भी वाओ या फील्ड सिलेक्ट होता है। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स शायद रहे हैं, ऐसा बिहेवियर रहा है, ऐसा माइंडसेट रहा है पहले से कि ये फील्ड की तरफ मैं अपने आप, बस एक मौके की जरूरत होती है, तो मौका जैसे ही स्कूल के बाद मिल गया तो तुरंत ही उसे पकड़कर आगे बढ़ते गए। वाओ। दोनों चीजें काफी इंटरेस्टिंग हैं, यस। बहुत ही यूनिक हैं दोनों चीजें। ज्यादातर लोग उसे एज अ प्रोफेशन या एज अ लाइफस्टाइल नहीं देखते, पर बिकॉज लिटिल बिट प्रिविलेज होते हैं लाइफ में कि घर से अलाउंस मिलती है, हम खुद भी उसकी तरह उस डायरेक्शन में सोच पाते हैं, हमारी नॉलेज या हमारे थॉट्स उस तरफ के होते हैं। तो अगर पॉसिबल है तो ये सब कर ही सकते हैं बिल्कुल, जो हमें चॉइसेस मिलती हैं। दैट प्रिविलेज वाज अवेलेबल, आई वुड से लकीली, कि उसकी वजह से मैं ये फील्ड्स में एंटर कर पाया, कंटिन्यू कर पाया और अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ विद गॉड्स यस। ग्रेस और विद गॉड बोलेंगे या एनर्जी ऑलमाइटी, जो भी हम उससे समझें, with that grace I am able to follow and continue both the fields. बहुत सुंदर। मुझे जो सुनकर महसूस हो रहा है कि आई थिंक आपके पेरेंट्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। सो आर योर पेरेंट्स आर आल्सो फ्रॉम दैट आर्ट फील्ड, लाइक क्या उनकी भी लाइफ में एक आर्ट का लाइक एक महत्व था, दे आर आल्सो फॉलोइंग द आर्ट? क्योंकि आई थिंक फैमिली जो एक हमारा बैकग्राउंड होता है, एक एनवायरनमेंट होता है किसी भी किड के ग्रोथ में, उसका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। सो मुझे जो लग रहा है कि ही दे बोथ हैव गिवन यू फ्रीडम टू चूज वट एवर यू वांटेड। सो इज दैट आर्ट इज आल्सो लाइक कुछ चीजें जेनेटिक्स होती हैं, कहते हैं कि ये तो हमारे खून में ही है। सो इट इज कमिंग फ्रॉम समथिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड और इज इट लाइक you opted like as a way of self expression or as a way of like describing yourself? पेरेंट्स का रोल सिर्फ इतना रहा है कि उन्होंने मुझे फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया है। उन्होंने कभी, मतलब पेरेंट्स की तरफ से, एंसेस्टर्स की तरफ से आर्ट मैंने तो नहीं देखा है। अगर आपने सुना तो मेरी सरनेम गनात्रा है, तो गनात्रा सरनेम यानी कच्छी जो होते हैं, गुजराती और कच्छी, वो ज़्यादातर बिजनेस की तरफ डाइवर्टेड होते हैं, पर मेरा माइंडसेट बिल्कुल भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहा और Oh, पेरेंट्स की तरफ से आर्ट नहीं आया बिल्कुल भी। इनफैक्ट योग प्रैक्टिस, योग अभ्यास भी पेरेंट्स की तरफ से नहीं, ऐसा हुआ है इनफैक्ट उल्टा हो गया जो सर होता है उसको, कि मैंने योग क्लासेस ज्वाइन करना शुरू किए, उसके बाद मैंने पेरेंट्स को भी बताया कि आप भी चलो मेरे साथ, इट्स रियली wow, गुड। amazing. तो So they have went to पास्ट कुछ yeah, नहीं है इससे रिलेटेड, पास्ट कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट hmm, स्टार्टिंग। तो amazing. बस ये है कि उन्होंने प्रोत्साहन दिया इस फील्ड के लिए और फ्रीडम ऑफ चॉइस की वजह से मैं बढ़ पाया हूँ आगे।
Wonderful. So, my next question would be how yoga influence your art. Like you are following art and yoga together. So, क्या आपने पाया कि क्या आर्ट में और योग में कुछ कनेक्शन है? जैसे मैंने शुरुआत की थी तो आई सेड yoga and art are a way of or a pathways to self discovery. Like we discover ourselves. So, in the same way, is there any connection you found in your experience between yoga and art? यस श्योर देयर इज अ लॉट ऑफ कनेक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट एक शब्द में अगर कनेक्शन बताऊं तो माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, ये शब्द के साथ दोनों ही फील बहुत डीपली रूटेड हैं और कनेक्टेड हैं। क्योंकि योग प्रैक्टिस में आप खुद भी महसूस करते हैं, जो लोग अभ्यास करते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे, कि सेल्फ डिस्कवरी होती है, सेल्फ अवेयरनेस होती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस बढ़ जाता है। और आर्ट में भी यही सारी चीज होती है, माइंडफुलनेस बढ़ जाता है बिकॉज यू आर कम्प्लीटली एनग्रॉस्ड इन दैट वर्क। तो आप खुद को डिस्कवर करते हैं और एक्सप्रेस करना है अगर खुद को, तो अपने आप ही डिस्कवर करने ही लगते हैं। नेचुरल प्रोसेस है, ऐसा जरूरी नहीं है बिल्कुल कि मैं बैठ कर सोचूं क्या मुझे दिमाग में आ रहा है, क्या मैं सोच रहा हूँ, नहीं। एज एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग आर्ट, you start discovering yourself, start becoming aware about yourself, and you start becoming conscious about yourself. And art does not just mean drawing, painting. मैं Hmm. ड्राइंग पेंटिंग वगैरह, लेकिन आर्ट कैन बी इन एनी फॉर्म। कुकिंग है, स्कल्पचर है, राइटिंग है, पोएम्स हैं, किसी भी तरह का एक्सप्रेशन है, दैट इज Wow. कॉल्ड आर्ट। तो आप कोई भी आर्ट कीजिए, साथ में योग को थोड़ा भी अगर जोड़ देंगे, यू विल ऑटोमेटिकली फाइंड दैट बोथ आर डीपली कनेक्टेड। Wonderful. You explain very well what art is. Like in any way, if we are expressing, that's a form of art. Then I want to know, like you have used the word like mindfulness, awareness. तो मैं चाहूंगा इन शब्दों को पीछे क्या छुपा हुआ है आप थोड़ा सा उसकी तरफ भी हमें ले जाएं. What is mindfulness? Like people generally know, but they don't know because what these words actually mean. So can you describe a little bit on what is mindfulness, awareness, and these words and how they are connected in yoga, like they take your yoga journey forward? राइट, तो माइंडफुलनेस को हम से बीइंग अ टीचर, मैं हर बार यही कोशिश रहती है मेरी कि मैं साधारण शब्दों में और कम से कम शब्दों में किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो माइंडफुलनेस ये है कि मेरा ध्यान, मेरा माइंड अभी इस प्रेजेंट एक्टिविटी में काम कर रहा है, या मैं भले ही बात कर रहा हूँ या फिर लेकिन माइंड कहीं और चल रहा है, कहीं चिंतित है, या क्या है। सो व्हाट इज my state of mind right now? My state of mind is Hmm. I'm talking with you Hmm. right now. I'm recording a podcast. Yes, that's it. बस यही mindfulness है। और Wow. कुछ भी अगर दिमाग में आता है, I'm automatically diverted to some other thoughts. Even while talking, it means I'm not being mindful of what I'm saying, of what I'm explaining. तो बस इतना ही है, इतना ही Amazing. साधारण शब्दों में कह सकते हैं। और बहुत Like लंबी yours. बातें की जा सकती है, लोगों ने किताबें भी लिखी है माइंडफुलनेस के ऊपर। Hmm. लेकिन मैं कोशिश करता हूँ एज ए टीचर, एक एटीट्यूड बन जाता है कि साधारण शब्दों में कैसे हम किसी को भी कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन कर पाए। Wow, and that's what actually real teaching is. Ki, I remember a quote ki a genius is one who explains in a very simple word the hardest thing in a very simplest way. और एक व्यक्ति क्या होगा कि सिंपल चीज को भी बहुत हार्ड वे में एक्सप्लेन करेगा टू शो कि यार आई अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. So this is what geniusness is, what you are trying to explain, and this is what teaching as experience you learn when you try to explain to others, and that's what students also learn when they can understand that. Okay, then what I understand from what you said कि mindfulness क्या है कि being in the present moment, जो आप कर रहे हैं पूरी तरह से अगर आपका mind उससे full है तो then I think you are mindful. That's what you are trying to say. करेक्ट। यस, अमेजिंग. और आई थिंक यही योग भी हमें सिखाता है कि कैसे कंसंट्रेट किया जाए अपने माइंड को. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी टू यू, वेरी सिंपल क्वेश्चन कि इन योर एक्सपीरियंस व्हाट इज योगा? योग क्या है? योग मेरे लिए क्या है? क्या बताऊँ? बाय डेफिनेशन, it means connection, as we all know about it. Connection with whatever you connect yourself with, you are being a yogic person, or you are having a yogic mindset with everything and anything that you do in your daily routine. तो 1 घंटे का योग प्रैक्टिस करके आगे क्लास से, दैट इज नॉट लिमिटेड टू योग प्रैक्टिस। किसी भी चीज के साथ हम कनेक्ट करते हैं,
व्यक्ति के साथ हो, सिचुएशन के साथ हो, किसी चीज के साथ हो, हम उस टाइम पर, उस वक्त के लिए हम योगिक माइंडसेट में हैं, ऐसा बिल्कुल कहा जा सकता है. सो इन सिंपल टर्म्स, कनेक्टिंग विद एनीथिंग throughout the day, with anything, anyone, any situation, we are doing yoga practice. That's it. Okay, I want you to explain because you said a very tough thing in a very simple word. आपने बहुत एक कठिन चीज को बहुत सिंपली बोला, लेकिन मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप डीपली बताएं क्योंकि हम कनेक्ट तो डेली हर कोई हर चीज से होता ही है. मे बी शायद वो कॉन्शियसली होता है या अनकॉन्शियसली होता है. तो योग का कनेक्शन किस तरह से डिफरेंट है एक नॉर्मल कनेक्शन से? हर कोई एक अपना जीवन जी रहा है, बट हाउ दैट योगिक कनेक्शन इज डिफरेंट? कैन यू एक्सप्लेन दैट? Sure. There can be this message, this sentence or statement what I made can or might be misinterpreted as attachment. Attachment is वाओ. different thing, connection is different thing. अटैचमेंट वो हो जाता है कि हमारे पास कुछ चीज है, कोई व्यक्ति है, उससे हम कनेक्ट तो हो गए, लेकिन अगर उससे छोड़ने की बात आती है तो हम दुखी हो जाते हैं. अगर दुखी हो जाते हैं उस चीज को छोड़ने के लिए, so it clearly means we are getting attached to that thing, person or situation. Whereas योग doesn't teach us, ऐसा नहीं कि योग हमें कहता है कि ऐसा मत करो. योग हमें कहता है कि कनेक्टेड रहो लेकिन अटैच मत रहो. सो कनेक्शन इज समथिंग, हमें इनर सेल्फ से हमने डीप कनेक्शन ऐसा बना लिया है, हम उस सिचुएशन को, व्यक्ति को, चीज को जानते हैं, परखते हैं, उसके साथ हम समय बिताते हैं, उसके बारे में जानकार रहते हैं. लेकिन अगर उस चीज से दूरी बनाने की बात आती है या वाओ. सिचुएशन से या व्यक्ति से दूर जाने की बात आती है तो हमें उसका बुरा भी नहीं लग रहा. अमेजिंग. बहुत योग सुंदर. या नॉट. या आई गॉट इट बहुत ही बेहतरीन था. आई थिंक व्हाट यू सेड इज कि यू डू वॉट एवर यू आर डूइंग बट द डिटैचमेंट स्टेट शुड बी देयर. अगर वो चला भी जाए तो आपको कोई दुख ना हो. यू आर स्टिल ओके विद दैट. यू आर स्टिल मेंटली एट पीस. यू आर स्टिल मेंटली रिलैक्स. दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. Yeah, I think that's what people are missing because हम I think जुड़ जाते हैं चीजों से इतना कि थोड़ी देर के लिए भी वो ये व्यक्ति हो या कोई बुक भी हमारी खो जाती है तो we get disturbed with that. So can you give some tips on that how to do that because you tell us the goal and you tell us the process. Then what's the process of that? Like you teach that in your class. So can you take us to that? Like what's the process? Well, I have been through a very struggling process to achieve that state. क्योंकि मुझे Okay. एक साल Yeah. आर्किटेक्चर भी था. आफ्टर 12th स्टैंडर्ड आई डिड माय फर्स्ट ईयर इन ग्रेजुएशन इन आर्किटेक्चर. आफ्टर दैट आई शिफ्टेड टू फाइन आर्ट्स. तो आर्किटेक्चर में क्या करते हैं, हमें बहुत बड़ी शीट्स ड्राफ्ट करने के लिए देते हैं, अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल हाउस मॉडल्स बनाने के लिए प्रोजेक्ट्स होते हैं. और जिस दिन सबमिशन होता है, professor would come and if the professor doesn't like our project, he will just make a big scratch on the sheet of paper or they will Oh. बस कि आपका मॉडल खराब है, आप खुद ही तोड़ दो, बिल्कुल ठीक नहीं है. We Hmm. by our own hands, जिन्होंने कुछ 2-3 हफ्तों तक रात जाकर मॉडल्स बनाए हैं, उसे हमें ही तोड़ना है. Oh. That made us detach from our own work. Hmm. कि इससे अटैच हो जाएंगे तो हम सेल्फ क्रिटिक नहीं बन पाएंगे. तो दैट इज हाउ दैट वो प्रोसेस में गया. इसलिए वो माइंडसेट, वो एट्रीब्यूट डेवलप हो पाया. लोगों से कैसे करवाना है वो इतना आसान नहीं है. Yeah. थोड़ा स्ट्रगलिंग प्रोसेस अगर थोड़ी होगी ना, एक बार वन टाइम हार्ड वे अगर कोई Hmm. प्रोसेस होगी, देन इट इज लिटिल इजियर टू रियलाइज. फॉलो करना तो Wonderful. दूर की बात है, अभी मैं खुद भी इतना डीपली फॉलो नहीं कर पाता हूँ. डिटैचमेंट हो ही जाता है कहीं ना कहीं, ह्यूमंस हैं तो, लेकिन वो सीखने की प्रोसेस जो है वो जारी. Wonderful. And that's what mindfulness is all about. You are mindful of that, like you do everything, but you don't get connected with that. Or you, whenever get disconnected, you are aware. Like generally, in Buddhism also, it is said, Buddhism में कहा जाता है कि generally things are temporary in nature. Like most of the things in this material world are temporary in nature. And we generally forget that, we get attached to that. And then when those things get away, we feel bad about it. We suffer. So is this a cause of diseases that we generally go through? It can be mental as well. Yes, it is. Most of the time, it is mental state that makes us go through sufferings. तो जैसे डिटैचमेंट अटैचमेंट की बात की तो वही है कि हम अटैच हो जाते हैं, उसकी वजह से हम दुखी हो जाते हैं कि होने ना होने की वजह से. सो दैट इज क्लियरली गिविंग अस एन इंडिकेशन कि वो सफरिंग जो है वो मेंटल स्टेट है. इट इज नॉट एट ऑल अ फिजिकल स्टेट.
I got it. And Karan is saying, learn this early so that you don't get suffer. जल्दी जितना हम इस चीज को सीख लेंगे, आई थिंक सफरिंग हमारी कम हो जाएगी। या वाह। तो चलिए थोड़ा सा पीछे और चलते हैं हम लोग आपकी आर्ट में। और जो आई वाज टॉकिंग अबाउट योर कॉलेज लाइफ ड्यूरिंग दैट आर्ट फेज। सो हाउ दैट आर्टिस्ट केम आउट ऑफ यू, लाइक वो जैसे आपने बोला कि योर प्रोफेसर यूज्ड टू डू कि यू फॉर्म द मॉडल एंड आफ्टर दैट यू ब्रोक इट योरसेल्फ। तो यात्रा वो एक इजी नहीं थी, वो चैलेंजिंग थी। तो कैन यू टेक अस अ लिटिल बिट इनटू दैट यात्रा की व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द लर्निंग्स यू वेंट थ्रू? जैसे आपने कहा कि डिटैचमेंट यू लर्न देयर, सो कैन यू टेक अस इनटू दैट कि एक आर्ट की जर्नी क्या क्या सिखाती है आपको? सो आर्ट की जर्नी हमें सेल्फ को एक्सप्लेन एक्सप्लेन करना, एक्सप्रेस करना सिखाती है। बिकॉज द कॉलेज वेयर आई लर्न आर्ट इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। स्किल्स तो बचपन से डेवलप, सभी नहीं कहूँगी हो चुकी थी, लेकिन थोड़ी बहुत बेसिक्स आती थी। स्किल्स हम्म। ज़्यादातर कॉलेज में डेवलप होती हैं, लेकिन हम्म। express करना, how to express ourselves through art was what was taught us in the college. So what we were made to do is draw anything and everything what we like, and then try to explain whatever we have drawn or painted or sculpted. एंड दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन। कोई प्रोफेसर आके ऐसे नहीं करता था कि बेटा आके ऐसे ड्रॉ करो, बैठकर ये कलर ऐसे अप्लाई करो। नो, दे वुड जस्ट डिस्कस विथ अस what we have drawn, what we have painted, or what we have sculpted, and on the basis of that they would try like a guru कि वो हमें गाइड करते थे कि एक्सप्रेस कैसे करना है हमें। हमने जो भी ड्राइंग किया है, जो भी मार्क्स बनाए, जो भी पेंट किया है, कलर्स यूज किए हैं, उसके द्वारा हम क्या कहना चाहते हैं। दैट इज अ प्रोसेस ऑफ 4 years कि वाओ। कैसे एक्चुअली वो हमारा एट्रीब्यूट, हमारा इनर नेचर ऐसा बन जाए कि हम किसी भी तरह एक्सप्रेसिव बने और हम्म। एक्सप्रेशन को छुपाए ना रखें। दैट या। वाज अ कंप्लीट डिफरेंट जर्नी। उसको एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है मेरे लिए फिलहाल। तो ओके। मैं आर्ट सो टीचर नहीं हूँ, तो या, आर्ट को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है so मुझे। so so let me make it easy. So can you share some of the challenges you face in your that being an artist? बनने के दौरान क्या क्या challenges आपने फेस किए? चैलेंजेस वर लाइक, पहले मेरी जो आर्ट में ट्रेनिंग हुई है वो ऐसे हुई है कि एक ड्राइंग रखा होता है, उसको साइड में दूसरे पेज पर कॉपी करना होता है। वो स्किल्स मेरी डेवलप हो गई, लेकिन बिना देखे, ये चैलेंज हमेशा मोस्ट ऑफ द पीपल फेस करते हैं कि बिना देखे जो माइंड में आ रहा है कुछ, उसे ड्रॉ कैसे किया जाए। वो Hmm. मैंने ओवरकम किया ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years। मुझे 4 साल लगे Wow. इस चीज़ को बाहर लाने में, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग Hmm. बहुत हार्डकोर ट्रेनिंग हो चुकी थी। ड्राइंग देखो और ड्राइंग कर लो सेम टू सेम, लेकिन कुछ सामने चीज़ रखी हुई है, बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ है। वो ट्रेनिंग मिलने के बाद एक ट्रेनिंग आती है कि ठीक है, ड्रॉ करना तो आ गया, पर माइंड में क्या आ रहा है, कैसे एक्सप्रेस करेंगे। दैट वाज द स्ट्रगलिंग पार्ट, जो थर्ड और फोर्थ ईयर में ज़्यादातर होता है। तो आर्ट का भी एक प्रोसेस है। पहले फर्स्ट सेकेंड ईयर में वो हमें अलग अलग मीडियम से ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर सिखाते हैं कि चारकोल यूज Hmm. करिए, पेंसिल यूज करिए, एक्रेलिक कलर्स, ऑयल कलर्स, वाटर कलर्स, और एनी मीडियम वॉट एवर वी वांट। एंड देन दे स्टार्ट अस गिविंग एक्सरसाइज कि 2 जन कोलैबोरेट करके देखो, 3 जन सोच एक साथ एक आर्ट पे काम करो। हाउ Oh. आर यू एबल टू एक्सप्रेस कीपिंग देयर एक्सप्रेशन ऑल्सो इन माइंड। दोनों को 2-3 जन का कोलैबोरेशन करके भी क्या कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। 2-3 जन के ओपिनियंस, सजेशंस, एक्सप्रेशंस क्लैश Hmm. होंगे, उनको भी कैसे Hmm. मेंटेन करते हुए, मैनेज करते हुए भी अपना एक्सप्रेशन डाल सकते हो। एंड देन दे हेल्प अस एंड गाइड अस थ्रू हाउ टू मेक आवर ओन आर्ट। कैसे खुद का ऐसा आर्ट बनाया जाए कि जो कभी किसी ने बनाया नहीं, कभी किसी ने देखा नहीं है। इट इज लिटरली द एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट आई एम थिंकिंग और व्हाट आई एम फीलिंग अबाउट सोसाइटी, अबाउट पीपल, अबाउट whatever, about my life, anything about society Wow. or So anything. yeah. So where from where you did your like this course in that art? कहाँ से किया आपने ये? Right, it is a very famous university, MS University, that is Maharaja Sayajirao University from Baroda. Wow. आर्ट की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है इंडिया की, तो मैं Oh, great. lucky enough to have graduated from there. Yeah, fortunate, fortunate, definitely. Yes. Okay, so now let's move. I think that's great about your art journey that you went through. Now I want to go into your yoga journey, like how
that yoga journey as a professional career? Like what came into your mind? Like you started your professional career, and how that yoga journey you started? What came into your mind? Ki I want to start that yoga. Like it's something like some people want to learn karate, martial art, something. So some story like that in with you, or is it like you just got an opportunity? You said like you didn't choose yoga. Yoga chooses you. So what करेक्ट। was that? तो कॉलेज में एंटर होते ही मैंने कॉलेज के नज़दीक ही थी योग इंस्टीट्यूट एक योग निकेतन जिसका नाम है वडोदरा में फतेहगंज एरिया में। तो 12th करने के बाद हमारे पास थोड़ा सा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के समय सुबह शाम कहीं ना कहीं समय मिलता है, हमें फ्री होते हैं थोड़े बहुत। तो बस मेरे नेबर जो थे उन्होंने सजेस्ट किया कि वर्कशॉप चलता है 1 मंथ का योग में स्टूडेंट्स के लिए, तो Hmm. वहाँ जाकर देखो कैसा है। वो खुद भी वहाँ पर जाते थे, मैंने बोला ठीक है जाएंगे एक दिन, थोड़ा जाके आते, टाइम है ही हमारे पास तो ये भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं। मैं जाता था वहाँ पर एंड एक दिन गया 2 दिन गया, आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी अमेजिंग, बहुत मजा Wow. आ गया। 1 मंथ वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड इनफ, इतना इनफ हो गया। I mean, 1 month was enough experience to push me into the field of yoga. Yeah. तो So like what was that experience? Is it like bodily based, or is it mental some experience you got, or is it mindfulness you got? Like what was that experience kind of? ओवरऑल सब आपने जो भी बोला सब मिला योग में, Oh my बेस्ड God. ऑन जो भी बोला। लेकिन उससे पहले मेरे थॉट्स, मुझे योग स्पेसिफिकली क्यों पसंद आ गया कि बचपन में जो मूवीज देखता था मैं, ये कराटे कुंफू की चाइनीज Yeah, मूवी चाहे, I also used to watch such movies, Snake in the Eagle's Fist, Karate Kid and all. Yeah, great. तो वो देख देख कर मुझे लगता था कि ऐसी प्रैक्टिस मुझे भी करनी है। तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसी कोई प्रथा या ट्रेडिशन ऐसा इंडियन नहीं है क्या हमारे पास, भारतीय संस्कृति में ऐसा कुछ नहीं है रखा हुआ है कि जो इस तरह की कोई प्रैक्टिस दे सके। तो जैसे मैंने योग ज्वाइन किया तो मैंने इसका ये तो सिमिलर है, जो मैं चाहता था Hmm. इतने समय से, मैं जो जिस जिसे पाने की, I found all those answers in yoga practice. That is what made me realize कि this is the thing that I will always follow no matter what. और बस धीरे धीरे फिर Okay. सर जो टीचर्स थे Yeah. उनको भी मेरी प्रैक्टिसेस पसंद आने लगे, दे पुश मी टू डूइंग सर्टिफिकेट कोर्स, रेगुलर क्लासेस। वहीं से मुझे वॉलंटरी सर्विस के लिए एज अ टीचर भी मौका मिला एंड रेस्ट इज द जर्नी। Okay. So, haven't you thought कि जब आप आर्ट फील्ड में ऑलरेडी यू आर एन आर्टिस्ट और योग का एक एक्सपीरियंस था, तो आपने एज अ प्रोफेशनली उसको चूज क्यों किया? लाइक यू आर ऑलरेडी आई थिंक अर्निंग वेल इन योर आर्ट फील्ड and you can practice yoga for your self practice, but why you chosen? Like somebody said ki Karan, you teach me yoga or something like that, anything behind that? नहीं ऐसा नहीं था, दोनों में इक्वली मेरा अर्निंग चल ही रहा था आफ्टर ग्रेजुएशन। आई थॉट दोनों फील्ड तो एक साथ पैरेलल फॉर इन अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रन कर सकते, इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट टू डू दैट फॉर मी पर्सनली। तो मैं मुझे एक फील्ड सिलेक्ट करना था, तो मैंने सोचा लेट मी टेक अ ईयर, लेट मी एक्सप्लोर बोथ द थिंग्स इक्वली एंड सी विच आई फील बेटर इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, फाइनेंशियली कौन सा मुझे ज्यादा सपोर्ट कर सकता है, मैं किस में कंफर्टेबल हूँ ज्यादा। So during that period, I went to SVSR to do 1 month's course of YIC. During that time, I was accepting commission works also for wall painting, canvas painting, portraits and everything. ये करते करते मुझे समझ आया कि एकेडमिकली और प्रोफेशनली और फाइनेंशियली मुझे योग ज्यादा सपोर्ट करेगा और मैं खुद उसमें ज्यादा Wow. कंफर्टेबल rather than आर्ट। So सपोर्ट you करने were के saying, लिए yeah, I will stop you here. So तो you were मैं saying like, yeah, I will stop you here for a moment. So you were saying there are like some challenges in the art field from the earning point of view, anything like that? Some challenges in earning, like feel like you want to make others aware who are wanting to be artists, something on that, or is it easy to earn in the art field also? Because there you are expressing, there it's your passion. So is it sufficient to give you a livelihood? नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि आर्ट हमें थोड़ा कम सपोर्ट करता है या योग में कम ज्यादा पैसे हैं या अपॉर्चुनिटीज कम ज्यादा, कुछ भी नहीं है। बोथ हैव इक्वली गुड पोटेंशियल। लेकिन मैं खुद पर्सनली
मैं उसमें कंफर्टेबल ज़्यादा नहीं था उस फील्ड में कि मैं उसे हम्म। कंप्लीटली प्रोफेशनली फॉलो कर सकूँ। या आर्टिस्ट के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब सेट डिज़ाइनर बन सकते हैं, गैलरीज ओपन अप कर सकते हैं, गैलरी ओनर्स बन सकते हैं, आर्ट कलेक्ट कर सकते हैं, आर्टिस्ट बन के बहुत सारे अच्छे अच्छे पेंटिंग्स बनाकर बेच कर भी पैसे कमाए जा सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, कनेक्शन वाह। बना के। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं है कि कम है। प्रिंट मेकिंग है, डिजिटल एडवर्टाइजिंग वगैरह है, उसमें अगर लोग प्रोसीड करते हैं, दे आर ऑलरेडी अर्निंग वेल, दे आर ऑलरेडी गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटीज। हम्म So there are many opportunities in that also. I was not comfortable with it. I was not interested as much as I was हम्म। into yoga. या So selected that. Bec- because you are also finding that ananda or bliss in the yoga, like what you wanted to practice, you are getting that. It is something I also heard. I also feel myself, for what you love and what you want to do. If someone will give you money for that, you want to do that because it's not a work for you at all. You enjoy that. Okay. So now I will go into that you mentioned of Esvyasa. I want you to little bit let uh, all of us know, those who don't know about SVSI, like what SVSI is. And second thing is I want to मैं बाकी सबको भी बताना चाहूंगा कि SVSI वह जगह थी जहां मैं करण से मिला और there he was sincerely doing his dissertation, some work. He was busy in that, and as you all know, like I also done my MSc from there, so मुझे भी वो करना था. So I asked him like what the dissertation is all about and all. So that is the point and the origin of this podcast. If I haven't met Karan there, so maybe this was not going to happen. That what we are doing right now. So just let us take into your SVSA journey and your learnings, your challenges you find here. First, let us all of us know what SVSA is. SVSI is a university which is an abbreviated form of Swami Vivekanand Yog Anusandhan Sansthan, meaning it is a university for research on yoga. और स्वामी विवेकानंद इसलिए नाम है क्योंकि he was the one who was the first one to divide Bhagavad Gita into four forms of yoga, that is Bhakti Yoga, Raj Yoga, Karma Yoga or Jnana Yoga. Wow. So following his footsteps, his ideology was also similar to what Vyasa is following. I mean, obviously Vyasa is following the footsteps and the ideals of Swami Vivekanand, who gave us the thought of connecting the Eastern philosophy to the Western scientific methods. On the basis of that, Guru H.R. Nagendran ji, he followed his footsteps and created a good big university, established a university where yoga, which is a Eastern or Indian philosophy, based on that, he connected the Western scientific principles and then gave it to the world in the form of योग थेरेपी. तो उन्होंने वो एस्टेब्लिश करने के बाद जो बड़ा पूरा एम्पायर बनाया है ऐसा का, Wow. इज दैट रियली ग्रेट वर्क कि योग Hmm. को साइंटिफिक वे में देखकर, साइंटिफिक अप्रोच देकर उन्होंने बहुत नया एंगल, नया पर्सपेक्टिव दिया है दुनिया को. Wow. And that's what the way we all are like attracted to it. क्योंकि शुरुआत में तो I hope मैं भी योग और इन चीजों को मानता था. It's just a belief, why to get. But जब हम साइंस देखते हैं कि there is something logic behind that whatever we are doing, then we do it more or we do it intentionally. Okay, great. You mentioned of Western philosophy and Eastern philosophy. Little bit on that, like what is that about? क्या थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं कि what that Eastern and Western philosophy, like how, what are the principles you mentioned? कुछ आपने principles की बात की, क्या है वो? तो ईस्टर्न फिलोसॉफी ऐसा है कि वो ज्यादातर स्पिरिचुअलिटी में मानते हैं, स्पिरिचुअलिटी में मानते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिसेस ईस्ट में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे जेन कल्चर है, जैसे योग कल्चर, योग ट्रेडिशन है, जैसे हमारी और भी ट्रेडिशंस हैं. चाइनीज में यिन यांग थियरी होती है, प्रैक्टिसेस हम्म होती है, कुंग फू हम्म कराटे प्रैक्टिसेस है, जो सारी एक ही सिमिलर फिलोसॉफीज पर बेस्ड है, जो कि है माइंडफुलनेस, ब्रेथ वर्क के ऊपर वर्क करना या फोकस करना. ये सारी चीजें एक जैसी ही हैं, सिमिलर पॉइंट्स पर फोकस करती है. हम्म. हालांकि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो ज्यादातर साइंस पर बेस्ड है, तो उन्हें प्रूफ चाहिए किसी भी चीज का. प्रूफ साइंटिफिक है तो दैट इज क्वाइट नेचुरल कि वो प्रूफ के बिना आगे नहीं बढ़ते. लेकिन हमें ये भी चाहिए कि योग को
लोग प्रैक्टिस करें, हमें दुनिया को हम्म बताएं कि योग अभ्यास कीजिए, तो हम हम्म उनको कैसे टच करेंगे, उनको कैसे कन्विंस करेंगे कि योग प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही ऑथेंटिकेटेड प्रैक्टिस है, बहुत ही यूजफुल एडवांटेजेस प्रैक्टिस है। तो हमें उनको उनकी तरह से बताना था, इसलिए साइंस को भी ऐड करते हुए योग वाओ को भी इस तरह दिखाया कि जो यहाँ पर शास्त्र में लिखा हुआ है योग दर्शन के बारे में, वो सारा ऑलरेडी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देकर ही बताया गया है, लेकिन हम हम्म, आपके लिए नए मॉडर्न वे में भी योग को कर अप्रोच दिखा सकते हैं। बता सकते हैं। हम्म। कि दोनों को कनेक्ट करना है, ईस्ट मीट्स वेस्ट, यही स्लोगन है ऐसे ऐसा का। तो that is how Eastern philosophy and Western scientific methods came together and gave us what we have today as yoga therapy. Yeah, wonderful. So you are saying something like it's scientific spirituality is what is followed in SVR. Okay, great. Now you mentioned something of therapy. And you mentioned also like your Advaita yoga is working toward the wellness of the people. So first of all, I want to know from you what is wellness, wellness क्या है और थेरेपी की जरूरत क्यों है और what are the fundamentals of therapy. बीमारी आई होप काफी बढ़ गई हैं आजकल और mostly they are lifestyle disorders. So what is the root cause of this suffering? Like what you learned during your MSc therapy, I think as a yoga teacher. So can you share a little bit on the therapy part and what is the scientific things behind that? So therapy, in simple words, it is किस तरह से हम कोई भी डिजीज को स्लो प्रोसेस में सिम्टम्स को क्लियर करते हुए रूट लेवल से हम उसे क्लियर कर सकते हैं, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते हुए। थेरेपी इज बेसिकली दैट। तो Wow. कोई भी थेरेपी ले लीजिए, फिजियोथेरेपी है और बहुत सारी थेरेपीज एग्जिस्ट करती हैं। तो योग थेरेपी में क्या है कि योगिक प्रैक्टिस यानी कि आसन, प्राणायाम, ध्यान, सूर्य नमस्कार और जिसमें आहार व्यवहार है, मिताहार को फॉलो करते हुए, लाइफस्टाइल को चेंजेस करते हुए, पंचकोश मॉडल जो है जिसमें हमारे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय, आनंदमय कोश को, इन सभी को इन्वॉल्व करते हुए, इन सभी लेवल्स पर वर्क करते करते यौगिक वे में Wow. कैसे किसी भी व्यक्ति को हीलिंग की तरफ ले जाया जा सकता। हालांकि कोई भी थेरेपी ये क्लेम नहीं करती कि कोई भी डिजीज है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा, बट ये जरूर मेक श्योर करते हैं कि उसमें फायदा हो, एटलीस्ट द पर्सन स्टार्ट्स द हीलिंग जर्नी ना। Wonderful. क्योंकि कोई भी, ये डॉक्टर भी इवन क्लेम नहीं करते कि हाँ पूरी तरह ठीक हो जाओ, बिकॉज नो वन वांट्स टू टेक Yeah. रिस्पांसिबिलिटी। पर यौगिक वे यानी पंचकोश मॉडल को फॉलो करना, यानी कि पूरी तरह लाइफस्टाइल को ऐसा चेंज कर देना, जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल थी उसको हेल्दी बना देना, ऑटोमेटिकली द पर्सन स्टार्ट्स बिकमिंग हेल्दियर। Hmm. ओके तो आई वांट टू टेक यू टू योर चाइल्डहुड और सब हम चाइल्डहुड में हेल्दी होते हैं, हैप्पी होते हैं, जॉयफुल होते हैं, बट ऐसा क्या होता है कि हम बड़े होते होते हमारी लाइफ में बहुत सारी डिसीजेस हो जाती हैं और व्हाट इज डिसीज एक्चुअली, क्या आप समझा सकते हैं एक डिसीज क्या है एक्चुअली में, व्हाट इज द डिसीज और वो हमारी लाइफ को किस तरह से प्रभावित करती है। और बिल्कुल। आजकल हम बहुत सारी ऑटो इम्यून डिसीजेज भी देख रहे हैं और बहुत सी नई नई तरह की डिसीजेज देख रहे हैं जो पहले शायद नहीं होती थी। तो क्या कारण है कि आजकल ये सारी डिसीज हो रही हैं, क्या हम फंडामेंटल लेवल पे कोई गलती कर रहे हैं? यस, फंडामेंटल लेवल पर गलती हम कॉन्शियसली नहीं कर रहे, हो जाती है। फंडामेंटल लेवल पर, चाइल्डहुड लेवल पर आपने कहा कि वी आर हैप्पी, वी आर कंप्लीटली गुड, वी आर हेल्दी। नो, दैट इज, आई वुड लाइक टू डिफर ऑन दैट स्टेटमेंट ऑफ व्हाट ओके। यू मीन। क्योंकि बहुत से लोगों के जो डिजीज एनसीडीज होती हैं वो पास्ट से रिलेटेड होते हैं। एनसीडीज यानी हम्म कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो हाइपरटेंशन है, जो स्ट्रेस होते हैं, जो एंजाइटी डिप्रेशन की इश्यूज होते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, या कोई भी फिजिकल डिसऑर्डर्स हैं जो एनसीडीज के अंदर कैटेगराइज किए जाते हैं, वो ज़्यादातर पास्ट की वजह से होते हैं। और पास्ट हमारा शुरू होता है चाइल्डहुड से। चाइल्डहुड में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो जाने अनजाने में लोगों को ट्रॉमेटिक इफेक्ट दे देती है, और वो जब अगर क्लियर नहीं होती हैं अपने आप से या किसी थेरेपी से, तो वो एडल्टहुड में जाकर उसी चीज़ को वो कन्वर्ट होकर डिजीज में तब्दील होकर बाहर आ जाता है।
आई रियली लाइक दिस आइडिया लाइक इट्स अबाउट द पास्ट एनसीडीज पास्ट की वजह से होती हैं तो कैन यू गिव अ एग्जांपल ऑफ दैट लाइक हाउ आई एम फाइंडिंग इट वेरी लाइक इंटरेस्टिंग कि ये कैसे पास्ट की क्योंकि जनरली वी थिंक डिसीज इज बिकॉज ऑफ राइट नाउ वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग तो ये कुछ न्यू है तो इसको समझा सकते हैं हाउ दैट पास्ट एनी एग्जांपल ऑन दैट एग्जाम्पल अभी एग्जैक्टली मैं याद करूँ तो कुछ लोगों के बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं जनरली समझ लो। किसी लड़की की बात करूँ तो उसे बचपन में किसी से हरासमेंट हुई है, तो वो बड़े होकर अगर बड़े होते समय अगर वो उस चीज को कैसे अप्रोच है उसका या उसे कैसे लेती है, अगर वो ठीक नहीं हुआ मेंटल ट्रॉमा, तो बड़े हम्म होकर वो उसका बिहेवियर उसकी वजह से फिर शेप हो जाएगा बिहेवियर उस व्यक्ति का, लड़की का या चलिए मैं हम्म स्पेसिफाई नहीं करूँ, जेंडर वाइज नहीं रहूंगा, किसी भी व्यक्ति का जो भी ट्रॉमा रहा है एनीवन या चाइल्डहुड, किसी भी रीजन से अगर वो ठीक से उसे हैंडल नहीं कर पाए, ट्रीट नहीं कर पाए टीनेज लाइफ में और अर्ली एडल्टहुड में, तो वो साइकोलॉजिकल इश्यू बनकर बाहर आ सकता है फिर। ओ एंड दिस इज व्हाट हैपनिंग दीज डेज कुछ ऐसी नई नई चीजें निकल कर आ रही हैं एंजाइटी डिप्रेशन एंड सो मेनी लाइक पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स भी हम देखते हैं जिनका कोई यस। कारण नहीं है और मॉडर्न एलोपैथी तो कहता है दीज आर इडियोपैथिक लाइक दे डोंट नो द रीजन बिहाइंड दैट सो आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज द रीजन इट कैन बी लाइक कि वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से और मे बी आई डोंट नो ये पास्ट एक्सपीरियंस शायद चाइल्डहुड का भी हो सकता है और मे बी इट कैन बी समथिंग फ्रॉम अ पास्ट लाइफ ऑल्सो पास्ट लाइफ का होना वो एक कभी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की बात आ गई, और अभी जो हमने बात की वो राइट नाउ लाइक लिविंग प्रेजेंट लाइफ की बात आ गई। तो हम्म बहुत बड़े टॉपिक्स हैं दोनों ही। या जो भी टॉपिक आप छेड़ेंगे उस पर बहुत लंबी बातें हो सकती है। ओके पास्ट लाइफ में बातें होती हैं, भगवत गीता में और इन सब में बातें की गई है पास्ट लाइफ के रिलेटेड, हमारे कार्मिक एक्शंस जो हैं उस पर, लेकिन उस पर बातें करने के लिए हमें और मतलब पूरा दूसरा Yeah, पॉडकास्ट yeah, करना पड़ेगा। yeah, yeah, sure, sure. Okay, so we will skip that part, no problem. So you are giving me a task, कि आशीष, we will do it later. Yeah, sure, we can do that. So, but यहाँ पे हम ये जरूर एक ले सकते हैं कि बस just I got that in my mind कि I met so many people जो कुछ kids ऐसे होते हैं कि they are very like deceived from the childhood. मतलब अभी उन्होंने इस life में कुछ नहीं किया, they haven't eaten wrong, they haven't done anything wrong. जैसे आप type 1 डायबिटीज देखते हैं कि इंसुलिन के इंजेक्शन से ही उनका काम चल रहा है ना सो मेनी थिंग्स आर देयर ग्लूटन डिसीज एक जो है कि दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द ग्लूटन चाइल्डहुड से ही है बचपन से ही ये चीजें आ रही हैं so maybe we don't know the reason behind that maybe it can be a past thing or it can be genetic also genetic भी हो सकता है कि we are getting from our parents also और बहुत सारे factors भी unknown भी हैं like when the nature changes so okay we leave it on क्योंकि एक लंबा टॉपिक हो जाएगा ठीक है और एक महाभारत का युद्ध अभी नहीं छेड़ेंगे हम लोग चलते हैं सो नाउ आई वांट टू गो टू दैट अद्वैत योगा दैट यू बिगिन you are like the creator or the owner of Advait Yog Foundation. So I want you to let us know how you reached the name of Advait Yoga and what was your vision behind creating Advait Yoga. How कि किस तरह आपने अद्वैत योग का उद्घाटन किया और आपका विजन क्या है उसके पीछे अद्वैत योग को बनाने के पीछे और थर्ड क्वेश्चन इसी से होगा व्हाट आर द चैलेंजेस यू फाउंड इन क्रिएटिंग द बिकॉज टू क्रिएट अ स्टूडियो इज नॉट एन इजी थिंग सो जो लोग वो देख रहे होंगे जो अपना स्टूडियो क्रिएट करना चाहते हैं दे वांट टू क्रिएट दैट तो उनको भी कुछ इंसाइट्स मिल सके तो व्हाट आर द चैलेंजेस यू फाउंड दैट या तो क्लास या कोई सेंटर या स्टूडियो शुरू करना एक बहुत बड़ी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। मैं शुरुआत में नहीं इंटेंशन था मेरा बिल्कुल भी ऐसा कुछ शुरू करने का, लेकिन क्योंकि लोगों ने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया कि कर आप इतना अच्छा योग सिखाते हो तो आपको अपना सेंटर शुरू करना चाहिए। कुछ साल पहले ऐसे बातें होती थी, मैंने कहा कि देखो मैं अभी बहुत उम्र की वजह से नहीं लेकिन स्किल्स में एक्सपीरियंस में छोटा हूँ, कम एक्सपीरियंस है, कुछ सालों का एक्सपीरियंस इज नॉट इनफ टू रन अ स्टूडियो, स्टार्ट अ स्टूडियो। ट्रू मैंने कहा कि लेट मी गो थ्रू मेनी थिंग्स, मेरे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्किल्स एक्सपीरियंस एक्सपोजर सब कुछ मिले, मैं श्योर हो जाऊँ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से
मेंटली फिजिकली सब तरह से मैं स्ट्रांग ऐसा बन जाऊं क्योंकि मैं पूरा एक सेंटर हैंडल कर सकता हूँ. ओनली देन हम्म. आई विल गो टेक दैट स्टेप टू ओपन अप अ स्टूडियो. And when I found myself capable enough, took a step to open the studio. And when I was thinking of names, कुछ चीज़ें मेरे माइंड में ऐसी थी कि मुझे लेटर ए ज़्यादा पसंद है बिकॉज इट इंडिकेट्स द फर्स्ट प्राइमरी फोरमोस्ट. ये सारे इंडिकेशंस होते हैं लेटर ए को लेकर. और जैसे ओमकार में भी हम ओम अकार का उच्चारण करते हैं, तो अक्षर जो है वो किसी तरह से मुझे पसंद है पहले से ही. हम्म. इसलिए मुझे अक्षर से या ए लेटर से कुछ चाहिए था. पापा ने सजेस्ट किया कि अद्वैत नाम कैसा रहेगा. मैंने बोला पकड़ लिया मैंने, बस परफेक्ट नाम वाओ. है, जब किसी की जरूरत ही नहीं है. अब बहुत ही बढ़िया मीनिंग है. अद्वैत सिद्धांत जो आदि शंकराचार्य जी ने जो पूरी उसके ऊपर किताब लिखी है, पुस्तकें लिखी है, जो अद्वैत सिद्धांत उन्होंने दिया है दुनिया को कि ऐसी कुछ मतलब दुनिया में या सृष्टि में या यूनिवर्स में एवरीथिंग इज वन. दो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती है, सिर्फ एक ही है, जो भी है सिर्फ एक है. वाओ. वो एक्सप्लेन करता हुआ सिद्धांत जो है वो अद्वैत है. और हम्म. योग भी कहीं ना कहीं कहता है कि दो चीजें उसमें नहीं है, लेकिन बैलेंसिंग, न्यूट्रल रहना, बैलेंस करना, इक्वानिमिटी, वो भी कहीं ना कहीं इसी को इंडिकेट करती है. सो दैट इज व्हाई Great. अद्वैत. Amazing. Okay, now what is your vision behind creating Advait Yoga? आपका vision क्या है? Like what you want to create, the wellness of the people, or there is something different you are having in your mind? कुछ अलग है आपके दिमाग में? Yes, wellness and spirituality both are my goals from Advait Yog. सिर्फ wellness वो एक अभी बॉडी है, मतलब फिजिकल लेवल पर सीमित नहीं करना चाहता हूँ मैं उसे. और इसीलिए अद्वैत जो सिद्धांत है उसे फॉलो करते हुए स्पिरिचुअल लेवल पर भी मैं लोगों को साथ साथ ले जाता हूँ. दैट इज व्हाट आई फाइंड एंड दैट इज व्हाट आई मेक पीपल गो थ्रू. ऐसा नहीं कि सिर्फ अब फिजिकल प्रैक्टिस कर लो बस आगे खत्म. नहीं, व्हाट चलिए. व्हाट अबाउट द स्पिरिचुअल हेल्थ. मैं किसी दिन आपको मेरे रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है क्लास के वो भी दिखा दूंगा. मैं जैसे हम एस व्यासा में इंटर्नशिप के लिए गए थे, योग थेरेपी की इंटर्नशिप होती है हमारी, तो उसमें हमें फॉर्म भरवाया जाता है फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स. जो पेशेंट्स आते हैं उनसे फॉर्म भरवाया जाता है. उसमें उनकी अलग अलग प्रकार के हेल्थ पैरामीटर्स लिखे जाते हैं, मेंशन किए जाते हैं. ओवर वन पीरियड ऑफ 1 वीक एवरीडे मेजरमेंट्स होते हैं. तो मैंने भी अपना फॉर्म भी उसी तरह सिमिलरली डिजाइन किया है. वाह. और अलग अलग हेल्थ पॉइंट्स उसमें बना है कि क्या कौन सी प्रकार की हेल्थ, अभी क्या स्टेटस है उनकी हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ ऑल्सो. ये भी एक सेक्शन रखा हुआ है. तो Cool. दैट इज हाउ आई मेक पीपल गो थ्रू ऑन देयर जर्नी. तीनों का अपलिफ्टमेंट हो, डेवलपमेंट हो, ऐसी मेरी कोशिश रहती है. चलिए, तो थोड़ा सा और डीपर चलते हैं और मैं जानना चाहूंगा व्हाट इन योर एक्सपीरियंस इज वेलनेस इज ऑल अबाउट. वेलनेस क्या है? और आपने एक शब्द यूज किया, बहुत भारी शब्द है, आध्यात्मिकता और स्पिरिचुअलिटी. व्हाट इज दैट इन योर एक्सपीरियंस? क्या है? व्हाट अभी तक आपने क्या समझा है कि आध्यात्मिकता क्या है और वेलनेस क्या है? या वेलनेस इन जनरल टर्म्स वी कैन से कोई भी व्यक्ति डिजीज फ्री, यानी मेंटली और फिजिकली कितना डिजीज फ्री है. यानी बॉडी एक्स हो गए, बॉडी पेन्स हो गए, स्टिफनेस हो गई, डिजीजेज हैं, उन सब से कोई भी प्रकार के डिजीज हैं, कितने समय तक वो डिजीज फ्री रहते हैं. अभी तो ऐसा हो गया है कि 1 महीने में एक डिजीज हुआ, सर्दी खांसी हुई, दूसरे महीने में कुछ और हो गया, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया. बड़े कोई डिजीज आ जाते हैं, वो कुछ महीनों तक, कुछ साल तक चलते हैं, वो खत्म हो रहा है तो साइड इफेक्ट की वजह से कुछ और हो रहा है. कंटिन्यूसली पर्सन इज ऑन द रन, एक लूप में वो डिजीज या चलते रहते हैं. पर क्या काफी लंबे समय तक कोई हेल्दी रह पाता है, नहीं रह पाता है, हमें ये नहीं पता. सो आई ट्राई टू मेक पीपल फॉलो दैट पाथ कि लंबे समय तक आप हेल्दी रह सके लोग. वो मेरा एक अप्रोच रहता है, हमेशा गोल रहता है. मैं खुद सब लोग इस जर्नी पर जा पाए, क्योंकि कंटिन्यूस जहाँ सुन रहे बीमारियों की बात होती रहती है. हम रोड पर चलते हैं तो हॉस्पिटल्स और खाने की दुकान यही बस ओपन, मतलब 1-2 किलोमीटर में 4-5 हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स और ये सब हो रहा है. व्हाट इज बीइंग बिल्ट, जो चीजें में रास्तों पर दिखती हैं, उससे पता चलता है कि समाज किस तरफ बढ़ रहा है, क्या बात बीमारी है. ट्रू.
ट्रू ट्रू क्या ट्रू। हम ऐसा समाज नहीं बना सकते कि लंबे समय तक बीमारियों का जिक्र नाम पेपर्स में न्यूज़ में कम हो जाए? वो हम्म। डॉक्टर्स नहीं है इसलिए नहीं कह सकेंगे कुछ, उस पर इतना वर्क नहीं करवाएंगे, लेकिन हेल्थ को मेंटेन रखना, मेंटेन तो कर सकते हैं। हम बीमारी ठीक नहीं करते लेकिन मेंटेन तो कर सकते हैं जितनी भी हेल्थ है। तो दैट इज द जर्नी आई वुड लाइक पीपल टू यस। टेक। यस, और एक पैराडॉक्स भी है, मैं भी देख रहा था, जैसे आजकल आपने देखा होगा एड्स आते हैं कि दिस इज माय फेवरेट हॉस्पिटल, आई वांट टू गो देयर। एंड समवन विल थिंक कि यार हाउ कैन अ हॉस्पिटल बी फेवरेट, यू वांट टू इंटेंशनली गो इनटू एन हॉस्पिटल। तो आई थिंक बिजनेस एक कल्चर जो है शायद जस्ट टू अर्न द मनी वी आर गोइंग इनटू रॉन्ग साइड, और वहां पे आप जैसे और हम जैसे लोगों का एक स्पेशल रोल है कि we should spread these like yoga and wellness thing in our with right intention. Okay, and you mentioned like these it is very hard, बहुत मुश्किल होता है लंबे समय तक wellness को continue करना। तो according to you what is the reason behind that, क्यों हम अपनी wellness को लंबे समय तक continue नहीं कर पाते? क्या हमारा खाना ठीक नहीं है, और we are not exercising, or we are taking the stress? What is the main reason you find behind the disease or not having the wellness for a long time? लाइफस्टाइल हमारी जो चल रही है अभी, वो लाइफस्टाइल में सब कुछ आ गया, स्लीप आ गया, फूड आ गया, सोशलाइजिंग आ गया, एवरीथिंग वॉट एवर वी डू थ्रू आउट द डे इनटू कम्स इनटू अवर लाइफस्टाइल। हमारा Hmm. इलेक्ट्रॉनिक्स का यूसेज हो गया। फिर हम हेल्थ के लिए और क्या मेजर्स लेते हैं? क्या हम हेल्थ के लिए कुछ करते हैं या बस पूरा दिन काम में ही अटके रहते हैं, तो हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे पाते? खुद की तरफ ध्यान देना, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सोशली हमें इंटरेक्टिव रहना है, सोशली एक्टिव रहना है इन शॉर्ट। फिर हमारे खाने पीने की हैबिट्स कैसी हैं? मन करता है तो क्या हम खा लेते हैं? डू वी गिव इन टू वॉट एवर कम्स इन अवर वे? डू वी Hmm. गिव टू वॉट एवर कम्स इन अवर वे इन टर्म्स ऑफ सो मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जो आता है हम वो यूज़ करते रहते हैं, गिव इन कर देते हैं हमारे अपने आप को। फिर हमारी स्लीप साइकिल कैसी हो जाती है? क्या हम स्लीप को सेक्रीफाइस कर देते हैं कोई और एक्टिविटी के लिए, Hmm. हेल्थ को मेंटेन करने के लिए? क्या हम हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कोई कुछ एफर्ट्स भी लगाते हैं या नहीं लगाते? लगाते हैं तो क्या वो प्रेशराइज्ड है, पीयर प्रेशर की वजह से जिम जाते हैं या एक्सरसाइजेस करते हैं, तो फिर वो कुछ मतलब का नहीं है। तो Yeah. ऑल दीज थिंग्स मैटर, हमारा इंटेंशन भी क्या है? अगर चलो लोग करते हैं 2-2 3 दिन घंटे जिमिंग भी करते हैं, रनिंग करते हैं, तो क्या वो पीयर प्रेशर की वजह से कर रहे हैं या खुद के लिए कर Hmm. रहे हैं? तो वाओ, इंटेंशन तो सही है। इंटेंशन रियली मैटर्स। और इससे मुझे ध्यान आया, एक श्लोक है भगवत गीता में, आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ दैट। भगवान कृष्णा भी हमें एक सीक्रेट फॉर्मूला दे रहे हैं, जो आपने बोला बस इसी को श्लोक के फॉर्म में, युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्सु कर्मसु, युक्त स्वप्न बोधस्य, योगो भवति दुःखः। लाइक फोर फंडामेंटल्स, चाहे हम कुछ भी लाइफ में मिस कर सकें, लेकिन आहार, कि हमारा आहार बैलेंस हो, ऐसा हो जो हम इजिली डाइजेस्ट कर पाए, इसलिए युक्त आहार। विहार मीन्स लाइक रिक्रिएशन, यू सेड कि हमारी लाइफ में रिलैक्सेशन नहीं है, हम रिलैक्स नहीं कर पाते, और हम जिम भी जा रहे हैं तो शायद वो एक पीयर प्रेशर में जा रहे हैं, बिकॉज माई फ्रेंड इज गोइंग, आई नीड टू बिल्ड अप माई मसल्स, लेकिन उसके पीछे इंटेंशन ये नहीं, आई नीड टू बिकम मेक माई बॉडी स्ट्रॉन्ग, समथिंग लाइक दैट। एंड युक्त चेष्टसु कर्मसु, हमारा जो एक वर्क लाइफ बैलेंस है, हमारा जो काम है, आई थिंक रातों में भी चलता है, हम अपने मेल चेक करते रहते हैं, और दिस इज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ स्ट्रेस फॉर अस। एंड फाइनली बात करते हैं स्वप्न बोधस्य, यानी वेकफुलनेस में और निद्रा में कितना बैलेंस है। तो अगर ये हम चार फंडामेंटल चीजों में लाइफ में, और कोई ये नहीं कह सकता कि ये मैं नहीं करता, मेरे पास टाइम नहीं है, कोई ये जरूर कह सकता है योग करने का मेरे पास टाइम नहीं है। मेरी मैम है प्रिंसिपल मैम, वो कहती हैं आशीष सर मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं कैसे योगा करूं? सो आई यूज्ड टू से कि मैम जब आप बीमार होते हो देन, तो फिर आप सारी चीजें छोड़ देते हो, देन यू डोंट थिंक कि यार आई नीड टू डू ऑल दोस थिंग। तो एग्जैक्टली। देन दैट्स व्हाई एट द एंड इट सेज योगो भवति दुःखा। जितने भी दुख हैं, अगर हम इन चार चीजों को फॉलो कर लें, सो आई होप हमारे ऑल काइंड ऑफ जो सफरिंग है वो दूर चली जाएंगी। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू वन ऑफ योर इम्पोर्टेंट पार्ट, जो आपकी आई थिंक लाइफ में, और मैं सबको बताना चाहूंगा, जो करण सर हैं हर साल एक चैलेंज करते हैं, 108 सूर्य नमस्कारा, एंड ही इज डूइंग फॉर आई थिंक 4-5 years, maybe please correct me if I'm wrong. Yeah. 8 years।
8 years, okay. 8 years is like really a good number. So he's doing continuously, and a lot of people are connecting to him. So Karan sir, मेरा आपसे क्वेश्चन यही है कि हमें बताएं ये चैलेंज की क्या इम्पोर्टेंस है और व्हाट इनिशिएटेड यू टू डू दिस, आपको किसने मोटिवेट किया कि आप ऐसा कुछ करें, और क्या ये 108 सूर्य नमस्कार पहले आपने खुद भी किए और उससे आपको लाइफ में कुछ चेंजेस फील हुए, देन यू वांट टू शेयर इट विद अदर्स, ऐसा कुछ था? 108 सूर्य नमस्कार की बात की, वो जब मैं योग निकेतन में सेवा के रूप में जा रहा था वहाँ पर एज अ टीचर, तो वहाँ से मेरे जो सीनियर रह चुके हैं वहाँ पर मैरीपल्ली प्रवीण, जो मुझे काफ़ी हद तक उन्होंने योग में और आर्ट दोनों में ही अच्छे से गाइड किया हुआ है। वाह। उन्होंने एक प्रथा शुरू की, वो खुद प्रैक्टिस करते हैं 2013 से, एवरीडे ओ, 108 सूर्य नमस्कार करना हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। ओ तो ग्रेट। यस, ही इज वेरी ग्रेट पर्सनालिटी। किसी दिन मौका मिलेगा तो हम उनसे भी मिलवाएंगे आपको। Sure, sure, sure. I would like to meet him. Like such a great thing because it's not easy. Like there was one teacher I have, and she used to say, doing a lot one day is easy, but to continue it daily, like just 2 minutes of Anulom Vilom, to do it for 5 days, 6 days, okay, but do it continuously daily, that's a real challenge. Our mind suffers with that, like daily or today. Yeah, I please go ahead. तो उन्होंने ये शुरू किया कि अगर वो खुद कर सकते हैं तो वो समाज को भी उसका बेनिफिट्स देना चाहेंगे। दैट इज Hmm. व्हाई स्टार्टेड, मतलब उन्होंने इस चीज का प्रचार करना शुरू किया कि हर साल जब योग दिवस होता है 21 जून को, तो हम सभी लोगों को 108 सूर्य नमस्कार की ट्रेनिंग देकर उस दिन स्पेसिफिकली सब साथ में मिलकर एक ही आवाज पर एक ही Wow. 108 सूर्य नमस्कार करते हैं। तो बहुत सारे लोग एक साथ करते हैं। शुरुआत हमने की थी तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि 108 लोग करेंगे तो अच्छा रहेगा, पर लोगों का इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि 270 270 लोग से ज्यादा लोग रजिस्टर कर लिए और Wow. सब साथ में एक साथ सूर्य नमस्कार किए, दैट टू इन ब्रह्मा मुहूर्त। इट वाज अ Oh. ग्रेट एनर्जेटिक सेशन, एनर्जेटिक, और वाइब्रेशंस बहुत अच्छे थे। सब एक साथ मंत्रोच्चारण करते हैं, सब एक साथ Hmm. अभ्यास करते हैं। इट्स अ ग्रेट थिंग। तो Amazing, amazing. तब से Yeah. लेकर आज तक एवरी ईयर ऑन 20th जून वी प्रैक्टिस दिस। और हमने फिर एक टीम फॉर्म कर ली टीचर्स की, जिसका नाम है 108 एसएन टीम। एसएन इसलिए क्योंकि सूर्य Oh, नमस्कार से शुरुआत हुई हमारी great. टीम। और Amazing. टीम फॉर्म करने के बाद हमें लगा कि हमें एक पूरी बॉडी बनाकर उसे ऑनलाइन क्लासेस हमने शुरू किए, क्योंकि कोविड के समय पर काफ़ी लोग डिस्टर्ब थे पूरी दुनिया में। तो हमने एक अच्छे सोच के साथ समाज को हेल्दी रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से वेलनेस के लिए एक ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए, जो सुबह और शाम में चलते हैं और बहुत ही नॉमिनल फीस पर चलते हैं वो क्लासेस। तो ऑनलाइन क्लासेस भी चलते, तो हमने फाउंडेशन ही फॉर्म कर लिया पूरी तरह। तो उसका नाम Wow. ही फाउंडेशन रखा हुआ है, सूर्य So नमस्कार फाउंडेशन। it is throughout the year and still running? स्टिल रनिंग। तो Wow. And हर it is रोज throughout the year. जी, It थ्रू is आउट द throughout the year. Okay. And the mainly that like Surya Namaskar is taught in them or like the complete yoga is taught in them? क्लासेस में रेगुलर प्रैक्टिसेस होती हैं योग की। और जब जून महीना आता है तो 1 मंथ की ट्रेनिंग दी जाती है स्पेशली सूर्य नमस्कार इवेंट के लिए, जिसमें ब्रीदिंग, मसल एंगेजमेंट, अलाइनमेंट, इन सब चीज़ों पर ध्यान देकर प्रैक्टिसेस करवाई जाती है। और फिर आखिरी दिन पर 20 जून को हम नहीं चाहते कि हमारी प्रैक्टिसेस या किसी और को ऐसा हम दुविधा में नहीं डालना चाहते कि हम इधर जाएं या उधर जाएं। तो हम कहते हैं कि Hmm. 21 तारीख को आप सारे इवेंट्स अटेंड कीजिए, उसके साथ 20 तारीख एक दिन पहले हम सब साथ में सूर्य Oh, नमस्कार कर लेंगे। सो टू गिव great. फ्रीडम टू ऑल, ये हमने एक Hmm. दिन पहले इवेंट रखा। सो एवरी ईयर वी डू दिस 1 मंथ ऑफ वर्कशॉप जिसमें ये होता है। और उसी के साथ हमने एक और प्रथा शुरू की है जिसका नाम है चंद्र नमस्कार। Wow. चंद्र नमस्कार हम इसी तरह हर साल करते हैं, लेकिन कब करते हैं? 31 दिसंबर को। हमें ये पता है कि पार्टी करनी होती है 31 दिसंबर को, लेकिन वो तो वेस्टर्न कल्चर है। तो हम Correct. क्यों वेस्टर्न कल्चर फॉलो करें? क्यों ना हम Hmm. उसको हमारा इंडियन कल्चर फॉलो करवाएं। तो हम इसी तरह 10-12 डेज की प्रैक्टिस देते हैं कि चंद्र नमस्कार क्या है, उसकी हिस्ट्री, कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, ब्रीदिंग कैसे रखा जाता है, और क्योंकि टेम्परेचर्स बहुत लो होते हैं तो उसमें भी कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। अब वो ग्राउंड पे कर रहे हैं सब Wow. कुछ, हाउ टू डील विद दैट एज वेल।
मेंटली फिजिकली स्ट्रांग कैसे बनना है। तो उस दिन हम 100-150 जन के साथ मिलकर ऑनलाइन एट द सेम टाइम whoever wants to join from out of India or out of Vadodara, they all join for Chandra Namaskar also. Wow. तो this is how we welcome a new year every year now. उसको भी Oh, 6-7 साल हो गए करते हुए, और सूर्य नमस्कार को 8 साल हो गए. That is one amazing. tradition that we are trying to revolutionize and make a mark on society in terms of I health, wellness, and yeah. spirituality, everything together. I really like this initiative that you are doing with your friend, I think, and it's really because I think Surya Namaskar is a complete practice in itself. And the vision, I think, when we do Surya Namaskar like 108, it also like uplifts our mind, the thought, like we are able to do it or not. It takes us into some different zone. Like I want you to personal, yeah, like अपना कुछ अनुभव बताएं कि जब आपने 108 सूर्य नमस्कार किए और लगातार तो व्हाट वाज योर मेंटल स्टेट यू फेल्ट क्या 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 बदलाव आपने फील किए और उसके साथ मैं जानना चाहूंगा क्योंकि आपने स्टूडेंट्स को भी कराया तो व्हाट वाज देयर फीडबैक आफ्टर डूइंग 108 सूर्य नमस्कार क्या उनके मानसिक परसेप्शन में कुछ चेंज आया बिल्कुल, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव प्रैक्टिस है वो, क्योंकि सबसे पहले 108 सूर्य नमस्कार सुन के हमें लगता है ओ इतने सारे, तो इम्पॉसिबिलिटी वाला एक्सप्रेशन आ जाता है। तो वो इम्पॉसिबिलिटी एक्सप्रेशन को ही चेंज करना एक बड़ी बात होती है। लोगों से हम लोगों को हम कैसे कन्विंस करें कि आप भी ये कर सकते हो, दैट वाज द मेन टारगेट। और मैं तो जब ज्वाइन हुआ था तब मैं 20 इयर्स का था, 22 इयर्स का था। तो ऐसा इट वाज नॉट अ बिग चैलेंज फॉर मी। मैं बस अपने जो मेरे सीनियर हैं वो मेरे समझ लीजिए वो गाइड फ्रेंड फिलोसोफर सब कुछ है फिलहाल मेरे लिए। तो वंडरफुल मुझे बस फॉलो करना था, मैं कुछ ज़्यादा सोचता नहीं था। और यंग होते हैं तो हम एनर्जी होती है, इसलिए ज़्यादा ऐसा मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि अच्छा होगा नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, इतना क्या yeah प्रैक्टिस करना, definitely correct वो भी कर that लेंगे। that kung fu or that martial art spirit was within you how does it matter we will do it somehow yeah लेकिन समाज से और बड़ी उम्र के अलग-अलग कैटेगरी से लोग आते हैं, एज hmm डिफरेंट होती है, जेंडर अलग होते हैं, माइंडसेट अलग होते हैं, तो उन सब से कैसे करवाया जाइए। तो क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हम टीचर्स होते हैं, तो एक प्रकार का विश्वास बैठा है लोगों का। तो वो विश्वास से पहले लोग आए हमारे पास, और जैसे ही हमने प्रैक्टिस की और पहली बार जब कर लिया तो सबका विश्वास और माइंडसेट बिल्कुल ही चेंज हो गया। क्या हो जाता है कि नमस्कार करते करते हमें पहले लगता है कि ठीक है शुरू तो करते हैं एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, लेकिन धीरे धीरे बीच बीच में एक माइंडसेट आने लगता है, अरे यार क्या बोरिंग लग रहा है, एक का एक ही तो कर रहे हैं, ठीक correct है बहुत हो गया। पर वो माइंडसेट hmm के थ्रू जाना, फिर लगता है कि नहीं यार अब थकान लग रही है, नहीं कर रहे हैं, छोड़ देना है, हाथ दर्द कर रहे हैं, पैर दर्द कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, प्यास लग रही है। उसी स्ट्रगल के थ्रू जाकर एंड डेस्टिनेशन जो हमने सोचा है वहां तक पहुंचना इज इटसेल्फ अ ग्रेट जर्नी। तो एक wow ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है खुद की तरफ, सबसे पहला खुद की तरफ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, भाई हम भी कर सकते हैं कुछ, तो जो हमने इमेजिन नहीं किया ऐसा हमने ड्रीम भी किया, ऐसा हमने प्लान आउट भी किया करना है, और हमने अचीव भी कर लिया। इवन दो देयर वर स्ट्रगल्स, पेन भी हो रहे थे, प्यास भी लग रही थी, इसके थ्रू जाकर भी हम पहुंच गए। अब सोच लीजिए एक बड़ी अनइमेजिनेबल चीज आप सोचते हैं, प्लान करते हैं और उस तक पहुंचते भी हैं। सो इट्स अ truly बिग जर्नी इटसेल्फ। it और it हर साल हमारे uplifts साथ ऐसे लोग जुड़ते हैं तो ये yeah फिर अचीव करते हैं, देयर आर ग्रेट एक्सपीरियंसेस। तो हम wow पहले ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है ताकि कोई, क्योंकि एफिशिएंटली प्रैक्टिस हो पाए। मैं ये सेंटेंस ज़्यादा यूज़ करना चाहूँगा रादर देन सेइंग कि किसी को इंजरी ना हो इसलिए प्रैक्टिस कराते हैं, नहीं। हम ये चाहते हैं कि सबके एक्सपीरियंस अच्छे हो। तो अच्छे एक्सपीरियंस के लिए पहले से ट्रेनिंग देना ज़रूरी है, अदरवाइज व्हाट माइट हैपन, लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं, सबकी मूवमेंट्स होती हैं, सबकी ब्रीदिंग होती है, वो सिंक्राइज नहीं होगी शायद, तो वो एक्सपीरियंस बिगड़ जाता है। टू हैव दैट कंबाइंड एक्सपीरियंस। और जो ग्रुप डायनामिक्स की जब हम बात करते हैं, हमने एमएससी में भी सीखी ग्रुप डायनामिक्स क्या चीज़ होती है और कैसे अफेक्ट yeah करता है। तो जब वो सिंक्रोनाइज होता है ग्रुप डायनामिक्स और जो एनर्जी क्रिएट होती है, दैट इज इनएक्सप्लेनेबल। तो Yeah, and group awareness is also uplifting when everyone does that thing. It's really
So one question that's coming to my mind, like you said, the people of all age come together. So I think it's going to be a challenge also at the same time for you to take all those person together. And the second thing is like you take those people out who are having any diseases, like any criteria you set during that. And thing Yes. is little bit about the training, like you mentioned some training you gave. Little bit you can tell us about what type of training it was, like what target you have in the training. Sure. Age group is the biggest criteria, एज ग्रुप एंड जेंडर डिफरेंसेस। और इस साल से तो हमने डिफरेंटली एबल्ड को भी इन्वॉल्व करना शुरू किया है। बहुत बड़ी Oh. चैलेंज सोचिए, एक ही चीज आपको सिखानी है अलग अलग प्रकार के लोगों को। क्या आप Mm-hmm. टीचर्स को और एडल्ट्स को और ओल्ड एज पीपल को सेम चीज सेम तरीके से सिखा सकते हैं? इट्स गोइंग टू बी Mm, डिफिकल्ट। हम true. लोग बैच भी उसमें डिफरेंशिएट कर देते हैं कि भाई ये चिल्ड्रंस योगा है, ये एडल्ट योगा है, ये ओल्ड लोगों के लिए, ऐसे बैच हम डिफरेंट कर देते हैं। तो अब सोचिए Yeah. कि इतने सारे हंड्रेड्स ऑफ पीपल को हम Mm, एक ही साथ एक ही समय पर सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस दे रहे हैं। हाउ चैलेंजिंग इट इज yeah. नॉट एट ऑल इजी। I can understand. So, लेकिन इजी बन जाता है ग्रेजुअली जब हम कुछ प्लान करते हैं, हम सोचते हैं, हम उसकी तरफ रास्ते ढूंढने लगते हैं। इट स्टार्ट्स बिकमिंग इजी। ऐसा अब हमें नहीं लग रहा है आफ्टर सो मेनी इयर्स की वो डिफिकल्ट है, क्योंकि हमने ऐसे बैचेस भी डिफरेंशिएट किए थे। अब कोई व्यक्ति हम कि अगर किसी को उठना बैठना नहीं कंफर्टेबल है, तो हम क्या करेंगे, चेयर सूर्य नमस्कार इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो उसका wow. अलग बैच है, लेकिन परफॉर्म सब एक साथ करेंगे फाइनल परफॉर्मेंस के दिन। तो ट्रेनिंग यही दी जाती है कि उसमें ब्रेथ वर्क कैसे रखना है, उसमें कैसे मसल एंगेज करना है, किस तरह से यूज करना है, उसमें कैसे अलाइनमेंट्स मेंटेन करनी है कि किसी इतने सारी बार कंटिन्यूसली एक जैसी मूवमेंट करने से इंजरी होने के Mm-hmm. कैसे चांसेस है। तो कैसे Mm, अलाइनमेंट मेंटेन करनी है कि ऐसे इंजरीज ना हो, और सबको एक साथ एक काउंट पर एक जैसे करना, उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। So when training is given, automatically the mind and body starts behaving that way. And when the final performance is done, everyone goes together in the same pace, at one voice, at one wow. speed. Wow. And it felt like the sun is also rising within all of us, those people who are practicing. Okay. Yes. And you mentioned of like that 31st December, you practiced Chandra Namaskara. So any significance why you chosen that 31 December as for Chandra Namaskar? Like 21 June, I can understand it's because the longest day and International Day of Yoga, we celebrated that day. But how you chosen the 31st as a day for Chandra Namaskar? Anything behind that? 31st December is generally a day or night, I would like to say, कि जब हम डेट चेंज होती है तो सब उससे पार्टी करते हैं। आई मीन नाइट टाइम इज द ईव ऑफ न्यू ईयर, इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। तो इवनिंग को Hmm. ही कुछ करना है, अगर हमें योग को कनेक्ट करना है तो क्यों ना चंद्र Wow. नमस्कार को ही कनेक्ट कर लिया जाए। तो चंद्र Yeah. नमस्कार का इम्पोर्टेंस जो है वो, जो एक बुक है बिहार स्कूल ऑफ योग की, आसन मुद्रा बंद प्राणायाम की, जो स्वामी सत्यनारायण सरस्वती जी ने लिखी है, Hmm. उसमें चंद्र नमस्कार की प्रोसेस और स्टेप्स वगैरह दिया हुआ है। हम वही फॉलो करते हैं। तो Wow. उसमें भी लिखा हुआ है चंद्र नमस्कार इज टू बी प्रैक्टिस ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम। तो Okay. इवनिंग को थोड़ा सा हम और लेट करके नाइट, मिडनाइट को यूज कर लेते हैं। तो मिडनाइट के लिए हम इम्पोर्टेंस ऐसा, अब देखिए जो आर्टिस्ट होते हैं या जो जो एक सीनियर है जिसकी बात कर रहा हूँ, प्रवीण सर, हम मतलब हम दोनों ही आर्टिस्ट हैं। वो उन्होंने भी आर्ट ही किया है अपने ग्रेजुएशन Wow. मास्टर्स। Great. तो व्हाट एन आर्टिस्ट डज एट मोस्ट ऑफ द टाइम इज, वो कुछ ना कुछ कनेक्ट तो करेंगे, उस हर एक चीज को एक क्रिएटिव Hmm. और कुछ थॉटफुल बनाएंगे, उसे कुछ रीजन तो हो। ऐसे ही कर देना इज नॉट एन आर्ट। अब कुछ भी Yeah. कीजिए, उसके पास रीजन है वो चीज करने का, तो वो एक आर्ट फॉर्म में तब्दील हो सकता। तो योग को और 31 दिसंबर ईव, न्यू ईयर ईव को कनेक्ट करने का क्या क्या तरीका है, व्हाई नॉट यूज चंद्र नमस्कार एज अ टूल। और वो Hmm. भी, मतलब फॉरगॉटन प्रैक्टिस है, बुक्स में तो है लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है। तो क्यों ना Yeah. उस ट्रेडिशन को भी बाहर लाया जाए, क्यों ना उसको भी वापस रिवॉल्यूशनाइज किया जाए। सो दैट वाज द बेसिक थॉट बिहाइंड। Wow, I really love the idea, like the way you are taking these traditional practices out and connecting with the major events like the New Year, the International Day of Yoga.
to make the people remember what these things are. Okay, now let's go into a important part. Yeah. सिमिलरली जैसे मैंने अभी आर्टिस्ट की बात की कि वो हर एक चीज के पीछे रीजंस होंगे. फॉर Hmm. एग्जांपल आप लोगो देख सकते हैं अद्वैत योग का, अगर आपको आई डोंट नो इफ इट्स कंप्लीटली विजिबल. इट इज अ Yeah. स्वान इनसाइड ऑफ अ लोटस. Hmm. तो अद्वैत सिद्धांत जो है उसका सिंबल है व्हाइट स्वान. फॉर प्योरिटी, फॉर वननेस, उसको रिप्रेजेंट करता है वो व्हाइट स्वान इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अद्वैत सिद्धांत. और योग में हम पद्मा यानी लोटस को भी इम्पोर्टेंस देते हैं कि जैसी भी दुनिया है हमारे आसपास हम उससे ऊपर उठ रहे हैं. Hmm. वो लोटस Detached. इंडिकेट करता है. वो दोनों को ही कंबाइन करके आई केम अप टू दिस लोगो दैट इज स्वान एंड लोटस. तो अद्वैत और योग Wow. दोनों को ही एक्सप्रेस करता हुआ ये लोगो फिर क्रिएट हुआ है. दैट इज हाउ Fantastic. यू डू ईच एंड एवरीथिंग एंड ऑटोमेटिकली यू बिकम एन आर्टिस्ट. आर्टिस्ट बनने के लिए आपको Hmm. ट्रेनिंग ये सब स्पेसिफिक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं. योर माइंड इज एन आर्टिस्ट. यू आर एज अ पर्सन, वी आर नॉट आर्टिस्ट. तो Yeah. मीनिंग टू एनीथिंग. अब फोटोग्राफ भी क्लिक करते हैं, फोटो बहुत सुंदर है लेकिन उसको मीनिंग नहीं दिया, उसको एक्सप्रेस नहीं किया, तो वहीं के वहीं घर ही Correct. रह जाती है. लोगों के बड़े बड़े फोटोग्राफ क्यों होते हैं, जो लोग मतलब मैगजीन्स में या पब्लिश होते हैं, अवार्ड्स जीतते हैं, तो उस फोटो को उन्होंने मीनिंग दिया है, कुछ थॉट दिया Hmm. है. दैट्स हाउ इट बिकम्स इंटरेस्टिंग एंड Yeah. वैल्यू. Amazing, like the mindset and the thought you are telling us. And I think that is the way also like artists naturally become meditative because they are so keen and particular, prioritized with their thought process, which the way they are going to think. तो वो शायद I hope naturally आपको meditative बनाता है. बिल्कुल. चलिए बहुत सुंदर. साथ Yeah. में आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ आर्ट प्रैक्टिस ऐसी हैं जो मेरी फेवरेट है. फॉर Okay. एग्जांपल सिरामिक्स मतलब पॉटरी जो आर्ट फॉर्म है और कैलीग्राफी आर्ट फॉर्म है वो मेरे सबसे फेवरेट है. क्योंकि Wow. उसमें व्यक्ति को हमेशा ऑटोमेटिक द पर्सन हैज टू बी माइंडफुल बाय Hmm. इन एनी वे. क्योंकि वो अगर माइंडफुल नहीं रहेंगे तो वो पॉट का शेप बिगड़ जाएगा. बिगड़ कैलीग्राफी जाएगा. के जो स्ट्रोक्स हैं वो ठीक नहीं आएंगे. पर्सन हैज टू बी माइंडफुल इन एनी वे. और वो नहीं है. अगर वो प्रैक्टिस करते हैं तो माइंडफुल बनना शुरू हो जाएंगे. This or that way the person goes into that meditative state. That is why Hmm. I always, I feel, go hand in hand. Wow, and in the same way, like activity can lead you to meditativeness if you are mindful of that. Any kind of activity, जैसे आपने कहा भी था, किसी भी प्रकार की activity अगर हम थोड़ा सा mindful हो और you said one beautiful word detached हो, then it can take you far along. Okay, now let's move on to the last phase and the important phase. But I know you are detached during all phases of your life. It doesn't matter to you what you are doing. So I want to know, like the phase you told me about, the time when you taught or coach yoga to Hardik Pandya, who is a Indian cricket player, and I want to know the opportunity, how you got that opportunity, and how, according to you, he's a person, and what was his priority when he come to class, like what type of person he is, and what he was curious to know in yoga, like any specific practice you taught to him. So please take us to his journey, like how you got connected to Hardik Pandya and that journey. We love to know, yeah. Right. तो अच्छी I'm glad that you brought this topic up. अच्छा लगता है जब हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं बड़ी, तो हम भी खुद को फॉर्चुनेट इनफ मानते हैं. मिस्टर हार्दिक पांड्या को ट्रेन करने की बात ऐसी हुई कि इट वाज 1 जनवरी 2024 लास्ट ईयर. तो तब मुझे एक अचानक से कॉल आता है कि आप करण बोल रहे हैं. मैंने कहा हाँ बोल रहे हैं. तो एक योग ट्रेनर की ज़रूरत है. मैंने बोला ओके करेंगे ट्रेन, सबको करते ही हैं फिजिकल ट्रेन पर्सनली लेके जाते ही हैं. Yeah. तो उन्होंने बोला कि ओके हार्दिक पांड्या है उनको ट्रेनिंग देनी. मैंने बोला ओके दैट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी. लेकिन दुविधा ये थी कि मुझे दूसरे दिन निकलना था एस व्यासा मेरे कॉन्वोकेशन के लिए और कॉन्फ्रेंस के लिए. तो Okay, मैंने one thing is that like you haven't thought like your some of your friend is joking with you. How you get like कि is it real? Like ऐसा तो नहीं लगा आपको कि कोई आपका friend joke कर रहा है आपके साथ? ऐसा तो नहीं है क्योंकि generally these things doesn't happen with us. Yeah. नहीं ऐसा नहीं लगा क्योंकि एक जन जो मेरे को टीचर पहले रह चुके हैं कलीग, उन्होंने ऑलरेडी मुझे बात बता दी थी कि ऐसा एक फोन आएगा तो अब Okay. बात कर लीजिएगा. सो आई वाज Hmm. ऑलरेडी अवेयर ऑफ दैट थिंग दैट वाज गोइंग टू हैपन.
वाह। पर जब फोन एक्चुअली आता है हमें लगता है कि ठीक है उन्होंने बताया तो शायद पता नहीं कितना सच होगा, पर जब आया दैट्स व्हेन आई रियलाइज ओके दैट पर्सन वाज टेलिंग द ट्रुथ। तो कहीं ना हम्म। कहीं कुछ पहले अच्छे काम किए होंगे योग फील्ड में, लोगों को सच में अच्छी ट्रेनिंग या अच्छी टीचिंग की होगी तभी जाके हमारा नाम रेकमेंड होता है किसी या बड़े व्यक्ति के लिए। तो दैट्स व्हाट मेड मी फील अबाउट माई सेल्फ कि अच्छा काम किया होगा तभी जाके अपॉर्चुनिटीज मिलती होंगी। सो डेफिनेटली। आई और फील आई होप अबाउट मैंने भी कोई अच्छा काम किया होगा, इसीलिए आज आप आनंद यात्रा पे भी आए हैं। या प्लीज गो अहेड। जब उन्होंने उनसे बात की पहले दिन मैं उनके पास गया तो ही सेड उन क्योंकि वो उस टाइम पे कुछ उनको फुट इंजरी एंकल इंजरी हुई थी ओके। और रिसेंटली आईपीएल आने वाली थी, वर्ल्ड कप आने वाला था और कुछ तो मेंटली अब स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, तो मेंटली डिस्टरबेंस तो नहीं लेकिन स्ट्रेसफुल तो रहते ही हैं कोई ना कोई। तो हम्म। बस इन सबको हैंडल करने के लिए और रिलैक्स होने के लिए ज़्यादा उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत थी कि बॉडी फ्लेक्सिबल बने, उनके परफॉर्मेंसेस अच्छे हों और मेंटली वो फोकस और बने, इसके लिए वो ट्रेनिंग चाहते थे। सो आफ्टर हम्म। डिस्कसिंग ऑल दोज पॉइंट्स आई मेड अ गुड प्रोटोकॉल फॉर हिम and at वाओ। the end of 2 months his personal physiotherapist himself told me, claimed that Karan sir you have given really good training, his performance has really improved to a great level। और हम्म। उसके बाद मैचेस वगैरह हुई उनके परफॉर्मेंस ठीक है, अब गेम्स चलती हैं तो उनमें परफॉर्मेंस अप डाउन हो सकते हैं, लॉस एंड विनिंग तो हो ही सकता है, दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पार्ट। बट ओवरऑल जो परफॉर्मेंस उनको इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट लेवल पर जो परफॉर्मेंस होती है दैट वाज क्वाइट इम्प्रूव। तो दैट हम्म। वाज द फीडबैक फ्रॉम हिज ओन पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट। और खुद का भी वाओ। उन्होंने भी कहा कि ही वाज वेरी हैप्पी विद द ट्रेनिंग दैट ही गॉट फ्रॉम माय साइड। अब है वंडरफुल। एज सच फीलिंग में ऐसा है कि यस ऑब्वियसली ही इज अ बिग पर्सनालिटी, लेकिन जब हम ट्रेन कर रहे होते हैं किसी को तो हम जैसे डॉक्टर होते हैं कि द डॉक्टर इज जस्ट ट्रीटिंग अ बॉडी, वो उससे कनेक्टेड है नहीं कौन है ऐसा नहीं सोचते। करेक्ट। तो सिमिलर माइंडसेट हैज हैपेंड कि ठीक है हम एक हम्म। बॉडी माइंड है, उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको जो जरूरत है उस हिसाब से ट्रेनिंग दे रहे हैं, दैट्स इट। और इतने सालों वाओ। स्किल्स से हम जो सीखे हैं उसके बेसिस पर जो मेरे खुद के सीनियर्स रहे उनसे बात करके थोड़ा बहुत उनसे भी जानकारी लेकर हम आगे ट्रेन करते हैं लोगों को, दैट्स द प्रोसेस और वही किया मैंने भी। Wonderful. So, And that इतना shows the पता detachment like you have. Yeah. तो प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियसली ऑब्वियसली अच्छे हैं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं हो गया कि अरे बाप रे क्या ही हो गया मेरे को। आएंगे ऐसे भी और अपॉर्चुनिटीज आएंगे, अच्छे काम करेंगे तो दैट्स ऑल व्हाट गोज इन माय Yeah. माइंड। या यू आर लेटिंग मी रिमेम्बर, कुछ दिन पहले ही मेरा एक पॉडकास्ट था गीता के ऊपर, गीता जयंती के ऊपर, एंड दैट सर वाज आल्सो सेइंग इट्स ऑल अबाउट कर्मा। यू डू गुड कर्मा एंड देन एवरीथिंग विल कम बैक टू यू रनिंग टुवर्ड्स यू। आप चाहो ना चाहो, it will come back to you, no doubt about that. And that's what in your case we are. As a person, Hardik Pandya is like you been with him for like whatever the duration you coach him for. सो वो एज अ व्यक्ति के रूप में कैसे थे, और जब भी वो योगा क्लास में आते थे तो कौन सी योगिक प्रैक्टिस की तरफ उनकी ज्यादा दिलचस्पी होती थी? इज इट मेडिटेशन, इज इट आसना, और इज इट लाइक ही कम टू यू, यू टीच हिम वट एवर यू नो एंड ही जस्ट गो अवे, और ही इंटरेक्टेड विद यू क्या, और अभी भी ये वो आपसे कनेक्टेड है? लाइक हाउ एज अ So, पर्सन ही वाज? yes, as a person, he's very energetic and continuously active throughout the day. As in, जब तक मैं session करवाता था, तो the moment he would enter that space, he would make everything so energetic and active. तो सब lively कर देते थे. Oh, hi Karan, how are you? And he will be very in the mood. He would be very much uplifted. Morning में तो और जैसे ही वो आते थे ही वुड एक्सपेक्ट, उन्होंने कह कर रखा था ही वुड लाइक टू प्रैक्टिस मेडिटेशन एवरी डे। कितनी भी वाओ। प्रैक्टिस हो कभी कभी उनके पास कभी कम समय होता है, 1 आवर का प्लान तो करते थे सेशन, लेकिन कभी वो आकर कहते कि आज 40 मिनट्स कर सकते हैं, 30 मिनट्स कर सकते हैं, या क्योंकि टाइम स्केड्यूल्स उनके कम ज़्यादा होते रहते हैं तो उससे कि मेडिटेशन तो कर ही देना एटलीस्ट, स्ट्रेचिंग हो ना हो, but pranayama or meditation compulsorily every day should be included in each and every session. That was his more मतलब approach, उस तरफ inclination उस तरफ ज्यादा था उनका। एंड वाओ। राइट तो इतने टच में नहीं है,
obviously because his schedules are very tight and IPL के पहले ही ट्रेनिंग दी थी जनवरी एंड फरवरी, दैट वाज इट। कोशिश करें कि Wonderful. वापस कनेक्ट हो जाए, वो वापस अगर प्रैक्टिस करने की इच्छा हो उनकी तो हमें Yeah. वापस कनेक्ट करें, तो वी ग्लैड टू डू दैट। Amazing. And it was an, I hope, an experience because आई फील एनीवन जो भी एक अच्छे लेवल पे होते हैं उन लोगों ने जरूर किसी ना किसी लेवल पे एक माइंडसेट को अचीव किया होता है, वेदर ही इज अ बिजनेसमैन और इज अ क्रिकेटर और ही इज एन एक्टर। कुछ ना कुछ उन्होंने जरूर लाइफ में ऐसा अचीव किया होता है, लाइक द एफर्ट और द हार्ड वर्क दैट दे पुट, दैट इज रियली वी कैन लर्न फ्रॉम देम, वो हम शायद उनसे सीख सकते हैं। Yes. So let's move on to that. Some more stories, entertaining stories, like I found on your, I think, Instagram or maybe Facebook. That story you mentioned of Murari Bapu. There, like you painted something and you got a chance to go in front of him. What was that interesting story? Please let us know, because such things are really interesting to know, like how, because what generally people desire, it happened to you in a very easy way. So क्या आप हमें बताएंगे वो क्या स्टोरी थी? मुझे लाइफ में ऐसे मौके मिले हैं बड़े बड़े जो लोगों को शायद सालों निकल जाते हैं, जीवन भर निकल जाते हैं और नहीं मिल पाते। अब वो मेरे पास्ट कर्मा इसी लाइफ के हैं या जैसे आपने कहा पिछली लाइफ के, पता नहीं, पर अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस बहुत हो रहे हैं स्पिरिचुअल लेवल पर, मेंटल फिजिकल लेवल पर। हरि बापू जो बहुत बड़े प्रीचर हैं रामचरितमानस के, और सब काफी लोग उनको बहुत मानते हैं, हमारी फैमिली भी उनको बहुत मानती हैं। तो क्योंकि हम मतलब ऐसे कुल के हिसाब से रघुवंशी कहलाते हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी हाथ पर राम लिखा हुआ है, तो वाओ, there is a tattoo, I mean, engraved, जो अमेजिंग। उन्होंने श्री मुरारी बापू ने ही खुद के अपने हाथों से लिख कर दिया था हाथ पर। ओह, अमेजिंग। आफ्टर दैट इज अ फॉर्म ऑफ हिज ब्लेसिंग। तो वाओ। ऐसा हुआ कि 2018 की बात है, जून महीने की। हम मीनाक्षी मंदिर मदुरई में उनकी प्रीचिंग्स होने वाली थी, और वाओ। उसी समय जो 108 सूर्य नमस्कार का इवेंट होना होता है उसकी भी तैयारियां चल रही थी। और मैंने उस इवेंट के दौरान अपना काम कर लिया था, लोगों को सिखाना, वॉलंटियर करना, टीचिंग, वो सब कर लिया था। और जब 20 जून आने वाला था उसके आसपास ही वो कथा मदुरई में होने वाली थी। तो मेरे पास दो रास्ते थे कि या तो मैं अपना इवेंट में पार्टिसिपेट करूं या तो वहां जाकर उनकी कथा का मनन चिंतन करूं, श्रवण करूं। तो हम्म। मैंने सोचा कि ठीक है, मैंने मेरा काम था एज अ टीचर टीच करना, परफॉर्म हम्म। करना उसमें जो होने वाला है, ठीक है, बाकी सारे और भी वॉलंटियर्स थे जो काम कर या सकते थे। तो मैंने सोचा मैं वहां जाऊंगा मदुरई। या लेकिन जब मैंने ग्रुप में अनाउंस किया कि मैं वहां जाने वाला हूँ, तो मेरे जो टीचर हैं और बाकी सब कलीग्स हैं, वो सब नाराज हो गए कि अरे करण इतना सारा काम किया तो छोड़ के जा रहे हैं। यस। तो मैंने कहा कि देखो मुझे वहां पे भी जाने की इच्छा है, ऐसा नहीं कि मैं काम छोड़कर जा रहा हूँ, मैंने सारे जितने काम करने थे यहाँ पर कर लिए, अब मुझे जाना है वहां हम्म। पर। सो हम्म। लेट मी गो। तो बोला ठीक है, क्या ही हो सकता है, अब डिसाइड कर ही लिया, टिकट्स कर ही लिया है जाने के, तो जाओ ठीक है। मैं वहां हम्म। गया। तो जो कथा होती है मुरारी बापू की, वो एक टॉपिक पर कथा करते हैं 9 दिन तक। तो उनकी क्योंकि मीनाक्षी मंदिर था और मदुरई में था, तो उन्होंने मीनाक्षी अमेजिंग टेम्पल। टॉपिक, या आई बीन टू द टेम्पल, इट्स अमेजिंग टेम्पल आई फाउंड। अमेजिंग आर्किटेक्चर, अमेजिंग Yeah, definitely. अमेजिंग। The biggest corridor as well as scripture, they are amazing. तो हमारा जो स्टे था उसी के प्रीमाइसेस में था, मीनाक्षी मंदिर के बाजू में ही बिल्कुल। तो ऐसा हुआ कि 20 जून को जब सूर्य नमस्कार अलॉन्ग विद द परफॉर्मेंस दैट इज गोइंग ऑन इन वडोदरा, मैंने वहां पर रहकर ऑनलाइन किया। सो अगर किसी तरह से हम वीडियो देखेंगे उसका, तो बैकग्राउंड में मीनाक्षी टेम्पल दिख रहा है और उसके Yeah. आगे मैं दूर में और मैं सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ कम्प्लीटली। So that is how I kept connect, maintain my connection with here also and attended Wow. there also. मीनाक्षी टॉपिक पर क्योंकि कथा थी, तो ऐसे ही मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मुरारी बापू को एक बस एक चित्र बना कर दिया जाए,
मीनाक्षी जो शब्द है उसको लेकर। मीनाक्षी यानी मछली, मछली जैसी आंखों, आंखें। हम्म तो मैंने बस एक अच्छा सा चित्र बनाकर उन तक पहुंचाया। तो उन्होंने उस चीज़ को सराहा, उन्होंने मुझे व्यासपीठ के पास यानी स्टेज पर बुलाकर अप्रिशिएट भी किया। तो दैट वाज वेरी ग्रेट मोमेंट कि इतना आसान वाह नहीं है उनके ब्लेसिंग्स पाना और उनके हाथों से ब्लेसिंग्स लेना, स्टेज तक हम्म पहुंचना। तो दैट वाज द मोमेंट दैट आई गॉट बिग अपॉर्चुनिटी इन दैट। और उन्होंने फिर मुझे पूछा कि बेटा आप क्या करते हो। मैंने कहा कि मैं एक योग शिक्षक हूँ और बड़ोदा बड़ोदा में इस तरह से सेवा देता हूँ। हम्म वो और भी खुश हो गए। उन्होंने कहा कि बेटा कल शुरू हो सुबह में, उससे 5-10 मिनट आपको कुछ योग के बारे में बोलना हो तो आप आकर स्टेज पर आ सकते हो। वाह Again, second I got an opportunity to speak about what yoga is, what ग्रेट अपॉर्चुनिटी तो 2 बार उनके समक्ष मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली बैक टू बैक, और सारे लोग खुश हो गए। और वो जो उनकी कथा होती है वो हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज में ऑन मतलब लाइव चलती है, इतने हजारों लोग सामने बैठे हैं। तो क्योंकि टीचिंग प्रैक्टिस हो चुकी है और इतने सारे लोगों को एक साथ सिखाना, या स्टेज फियर बिल्कुल निकल चुका था, बड़ा मतलब एक कुछ तो हुआ बड़ा, उसको सिचुएशन बोले हम्म या टास्क बोले, अपॉर्चुनिटी बोले, समथिंग बिग हम्म हैपेंड। मैंने कहा कि अब एक गुरु के, एक बड़े महान व्यक्ति के, महान आत्मा के अगर ब्लेसिंग्स मिल चुके हैं दो चीजों को लेकर, आर्ट और योग दोनों को, तो अब तो हम्म इस चीज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है मुझे। अब वाह इसी को करें चाहे कुछ भी हो जाए, किसी के अमेजिंग आशीर्वाद मिल जाए, फिर और क्या चाहिए जीवन। दैट इज एंड yeah, and also when you get such signals, what we say, the destiny shows you, then you get like you are on the right track. And also the joy you feel, the ananda you feel when you do what you are capable of, like you can heal. भी बड़ा प्रभावित करता है, जैसे कोई बीमार होता है, आप थेरेपी देते हैं, कई समय से वो बीमार है, और then he can smile, he can like live the life joyfully. That is also a very wonderful moment कि yes, you are transforming someone's life. So, एग्जैक्टली। Karan sir, it's an amazing conversation. I hope we all had, and we heard your journey. It is full of so much, I feel, hard work and the art, like you are expressing through your body language as well as through your eyes, through your work, and which is also shown in your yoga classes. That's why everyone is praising you. So let me just give you a short summary, those who are watching this podcast. So today we have Karan Ganatra sir with us, who is a artist as well as a founder of Advait Yogshala, situated in Vadodara, and there he is teaching yoga and creating the wellness for people. लोगों के लिए wellness create कर रहे हैं, and at the same time following the art, being the artist all the time. And what today I learned from his artist is someone who have a thought behind everything, जो सोचता है, एक विचार करता है एक किसी के पीछे, and then he expresses himself. So it is what I said in the big, and yoga are a pathway for self discovery. In yoga also we balance our body and mind, and art also you express your soul, you express your mind, and then you get Karan also led us to know what mindfulness is all about. He said mindfulness is what, if you are present fully in the moment, you are doing whatever you are doing right now here fully, that is mindfulness. He also led to his experience of spirituality, his experience of doing 108 Surya Namaskara, how he changed the perceptions of people, कैसे लोगों की मानसिकता को बदलते हैं, और कि हम को कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में, वी कैन डू एनीथिंग वॉट एवर वी डिजायर। और 8 सालों से 108 सूर्य नमस्कार का जो एक इनिशिएटिव और एक विजन क्रिएट किया है अपने सर के साथ, दैट इज अ मिरेकलस थिंग। आई रियली लव्ड इट एंड आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ माई सेल्फ, एंड please share that link also. I will share in the description. If anyone can want to join, they can join also. And one new initiative that you mentioned is Chandra Namaskara, because generally people are forgetting these practices. You can find those in the books only. But you mentioned here, and on 31st, like New Year, on the night of New Year, in spite of doing that partying and all, making your wellness go away, you do Chandra Namaskar and create a wellness for you. And then you express your beautiful story, how you got a chance or got a miraculous chance to teach
or coach yoga to Hardik Pandya and learn the humility with which he's learning yoga. You mentioned that he loved the meditation. He daily does the meditation. So that shows we all should do meditation daily in our life as well. And then you take us to your story and with Murari Bapuji, how you got a chance to share your yoga learning with all. So that is from my side, and I really enjoyed and love this conversation. एंड हर एक पॉडकास्ट में मैं कुछ सीखता हूँ और आपसे जो आज मैंने सीखा है वो ये कि हर एक सेंसिटिविटी और एक आर्ट कैसे आपके माइंड को एक शार्प बना सकती है और मेडिटेटिव बना सकती है और रिलैक्स बना। पॉडकास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने देखा कि यू डू एवरीथिंग यू वांट टू डू बट एट द बैक रिमेंबर दैट डिटैच स्टेट ऑफ माइंड। एक ऐसी अवस्था में हम रह पाए कि अगर सब कुछ ना भी हो फिर भी वी कैन हैव दैट आनंद और हमारी आनंद की यात्रा निरंतर। द लास्ट टू शेयर एनी फीडबैक दैट यू हैव, यू वांट टू शेयर योर some final words for anyone who is starting his journey of yoga like you started, and for artists you want to say anything particular, you can share your final words. बिल्कुल। एक सजेशन मैं ये दूंगा कि कोई भी अगर अपनी योग जर्नी शुरू कर रहे हैं तो ऐसी जगह से शुरू करें जहाँ पर योग का इम्पोर्टेंस बहुत डीप रूटेड हो। फॉर एग्जांपल मैं वडोदरा से हूँ, मैं लकी इनफ हूँ कि वडोदरा से हूँ मैं, तो वडोदरा में योग की जर्नी जो है, रूट जो है बहुत डीप है। आपने अगर स्वामी कुवलयानंद जी का नाम सुना है, Wow, yeah. श्री अरविंदो जी का नाम सुना है, तो वो सारे ही लोग बहुत अच्छे अच्छे योग पायनियर्स का कनेक्शन वडोदरा से है। अगर आपको उसके बारे में और भी जानना है तो एक जन से कनेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर रितेश पटेल, जो वो भी एक मेरे एक और टीचर है जहाँ Wow. पर मैं का वडोदरा में योग सेंटर है लाइफ स्प्रिंग वेलनेस। तो उन्होंने इस चीज़ पर बहुत रिसर्च करके प्रचार Sure. करने को किया है। वहाँ पर मैं जॉब करता था कुछ समय के लिए, इनफैक्ट अभी भी करता हूँ। जो एसवीएसए का वाईआईसी कोर्स जो चलता है वो एफिलिएटेड सेंटर है एसवीएसए का, तो प्रैक्टिकल टीचर भी मैं वहाँ होता हूँ। Amazing. डॉक्टर रितेश पटेल, ही इज अ आयुर्वेद डॉक्टर एंड योगा टीचर। Sure. तो और वडोदरा और योग की जो हिस्ट्री है उसके बारे में और जानने के लिए आप उनसे कनेक्ट कीजिए। जो Sure, योग sure. की जर्नी शुरू करना चाहते हैं, आप अच्छी ऐसी सिटी में जाएं जहाँ पर योग ऑलरेडी बहुत अच्छे से चल रहा है, जैसे मैसूर है, लोनावला है, या मुंबई में योग इंस्टीट्यूट है, बिहार स्कूल ऑफ योग है, या वडोदरा है, या ऋषिकेश, ऐसी सब जगह से जर्नी शुरू करेंगे। यस, तो और एक ऑप्शन मैं दूंगा, या फिर और अब कहीं पर भी ना मिले वडोदरा में तो अद्वैत योग स्टूडियो जरूर जाएं। डेफिनेटली। उससे क्या हो जाता है कि इंस्पिरेशन और मोटिवेशन बहुत बड़े पैमाने पे मिल जाता है, क्योंकि वो Sure. वैसे माहौल क्रिएट हो चुका है वहां पर। Yeah. So try to go that way. Wonderful. Yeah. Any final words you have for the artist? Because मैंने किसी को बताया she is also an artist और आपके बारे में कि I shot a podcast. She is eagerly waiting like when you are going to release that, and she is a artist by herself. तो कुछ आपके पास है क्या योग का ऐसा कुछ टिप या एनीथिंग यू वांट टू शेयर टू द आर्टिस्ट, स्पेशल दैट आर्टिस्ट कम्युनिटी, लाइक व्हाट दे कैन adopt from yoga in their art field to enhance their art skills? Anything like that you experience? बिल्कुल। आर्ट तो जो लोग करते ही हैं, उनको किसी भी तरह से अगर और डीप कनेक्शन करना है खुद के आर्ट से ही और उसे एनहांस करना है, I would really insist all of those people to start practicing yoga in any form they find. किसी के पास जाकर ऑनलाइन करना है या किसी के साथ डिस्कशन भी करना है, in any way possible, just start connecting through yoga also. It will really help your practice increase exponentially. That is what I have experienced myself, so I can say it with complete conviction and confidence कि बिल्कुल दोनों को आप आगे साथ साथ लीजिए। योग एज अ टीचर या एज अ प्रोफेशन कंटिन्यू नहीं करना, इट्स ओके, बट जस्ट bring that thing into your life and see how your journey becomes in art also. Yeah, or reverse way we can say also, if your body and mind is not healthy, maybe you can not be a good artist as well. तो मे बी शायद हम अपने बॉडी माइंड को बैलेंस कर सकते हैं योगा के थ्रू, एक वेलनेस के थ्रू, एंड देन वी कैन बी अ गुड और बेस्ट आर्टिस्ट एज वेल, बिकॉज वी कैन एक्सप्रेस विद हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड एज वेल.
Okay, so yes, any feedback or any review for Anand Yatra, कुछ suggestion आनंद यात्रा के लिए और जो आपकी यात्रा रही, आई होप टुडे यू एंजॉय दिस ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन. थोड़ी लंबी थी, डीप थी, और उसके बाद फिर वी विल जस्ट प्ले अ गेम ऑफ थ्री. या एनी सजेशन फॉर आनंद यात्रा यू हैव, एनी फर्स्ट ऑफ ऑल फीडबैक? वेरी मच आई एम वेरी मच ग्रेटफुल कि आपने मुझे इतना कंसिडर किया आनंद यात्रा के पॉडकास्ट के लिए और आपको भी बहुत सारी बेस्ट विशेस कि आपकी आनंद यात्रा और आनंदमय बनती रहे. And I think you have increased the Anand of Anand Yatra as well by being a part of that. Yeah. Okay, so finally let's play a game of three. I think हमने deep बहुत सारी बातें की और deep conversation की. Now finally, I will ask you three things you have to say in a very short way and directly, because you are a thinking person, so you will think I know, but just say whatever comes to your mind. Any three places you go to recharge your mind? Mountains, any natural place, and during night time. Wow. Any three people you want to meet when you are in tension or stress? I know you are not most of the time, but you want to meet those three people which recharge you or uplift you. Parents, close friend, and my mentor. Wow. And mentor, I think the teacher, he's doing Surya Namaskara, he's your mentor. Yes. Wow. Okay. Three food that you want to eat whenever you want to have a good time, good space mind, when you are feeling hungry. Three foods you love to eat. Any particular? Yeah. Um, Good chocolate. Okay. Okay. Then good chocolate only. Nothing as such. Okay. क्योंकि So maybe good chocolate three times. Good chocolate, good chocolate, good chocolate. Okay. Three books you want to refer to others, maybe from art side or yoga side you loved. Three books which really transform your mind. okay. Oh, that is a difficult question because there are many books. I think I would like to pass that question because there are too many books and it's difficult to mention only three of them. Okay, so let me shorten it for you. Just one book you want to refer. I think any book, whichever you read, that will automatically make you motivated to read another books also. Yeah, That is yeah, yeah. on your Sure. journey. It's like a Something that connecting thing from motivates one. Yeah. that और ऐसे अचानक से पूछेंगे बुक्स के बारे में तो ये तो Okay. जैसे No problem. Let's pass this question. because Now let's, yeah. every book has something or the other interesting things. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इस बुक को पढ़ के बहुत कुछ हो जाएगा. एक बुक को Mm-hmm. पढ़ के कुछ होगा, दूसरी बुक को पढ़ के कुछ और होगा. So one book will lead to another book. तो कोई भी बुक I, रीड कीजिए, whatever you yes. like, automatically आपको जो जरूरत होगी ना, उस हिसाब से आपको बुक सजेस्ट अपने आप होनी Wow. शुरू होगी. Let me read this. Wow. I think this is a like artist kind of answer you gave. Truthful Oh, and realistic answer. Okay. Now, finally, any three movies that you watch and you rewatch to motivate yourself? Any three movies that really yes, motivate you? yes. भाग मिल्खा भाग first. Okay. दिल चाहता है. And one is any, I mean, कोई जैकी चैन की कुछ movies kung fu related. Kung Fu martial art type. Okay. Yes. Now, let's go with हमने अच्छी बातों की तो चर्चा की. Now let's go with three things you don't want or you don't like at all. Yeah. I mean, for that I would have fourth recommendation also. There is one movie documentary of called On Yoga Architecture of Peace. Okay. कोई डॉक्यूमेंट्री है एक फोटोग्राफर की जो उन्होंने खुद ने 20 years of his own योग journey has recorded into that movie. तो Yeah, वो I think I Apple TV have पे watched available that. Maybe I think I watched that, but I will है. rewatch it. Yeah. फिलहाल एप्पल टीवी पर अवेलेबल है, उसकी बुक भी है उनके फोटोग्राफ्स की, तो यू कैन सर्च Okay. दैट ऑन एंड गेट इट फॉर योरसेल्फ. Wow. I would like to ask, have you watched Peaceful Warrior movie? I really loved that movie. Peaceful Warrior. Peaceful Warrior. It's a movie. Novel is also there. So that is the recommendation to you from my side. Okay. You watch whenever you have time. Okay. Now, final, because we talked about some good things really which uplift your mind. Now, because in life we don't have all the time good things. So, any three things you don't like at all? Anything you mentioned, three things जो बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा कुछ है?
बिल्कुल पसंद नहीं है। Yeah, आई हैव you सीन don't. लॉट पसंद नहीं ऐसा तो पसंद नहीं है। हाँ ऐसी चीज तो है, लोग भी हैं, सिचुएशंस भी हैं। नहीं, इतना नहीं है कि बहुत नापसंद वाला माइंडसेट नहीं है, बिकॉज आई एम सेइंग अद्वैत अगेन। Yeah, वो है एवरीथिंग इज वन, जस्ट लेट दोस थिंग्स कम टू योरसेल्फ एंड डील विद दोस थिंग्स, पीपल, सिचुएशंस विद अ योगिक माइंडसेट एंड यू आर गुड टू गो। आपको पसंद नापसंद कभी रहेगा ही नहीं। सो wow. इतना नहीं है Okay. कुछ। Yeah, I think last question. Any three recommendation? I hope you love the experience at Anand Yatra. So, any three people you want to recommend? Like I can connect to. You would love to know their story. Any three people you want to refer? श्योर, जैसे मैंने कहा कि एक डॉक्टर रितेश पटेल से आप कनेक्ट कर सकते हैं। टू टेक यू टू थ्रू अ जर्नी ऑफ हाउ वडोदरा इज हैज अ डीप रूट्स ऑफ योग एंड इट्स कनेक्शन टू Wow, big great yoga pioneers and special places as well. One is Meripali Praveen, he's artist and a yoga teacher himself. तो वो भी आपको काफ़ी अच्छी इंसाइट्स दे सकते हैं पूरी चीज़ों पर, और उनकी खुद की लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है। wow. एंड थर्ड पर्सन आई थिंक, अभी तो मेरे दिमाग में दो ही जन है। Okay, two are enough. No problem. डॉक्टर एच आर नागेंद्र जी को तो ऑलरेडी उनके Yeah. साथ बहुत क्या ही हुआ है, तो दैट इज फॉर थ्री पीपल आई Okay, okay, okay. Great, great. And I hope you loved this session maybe. कहीं कहीं थोड़ा tough हुआ होगा, but did make you feel good? Okay. So yes, I really enjoyed this whole conversation, and we have come to the end of this podcast. And thanks a lot for connecting Karan sir, Karan Ganatra sir, for being a part of Anand Yatra, for enhancing the Ananda of Anand Yatra. And I would like to tell everyone you can share this podcast if you want to know a true story, how a person can be transformed into an artist, and from artist to yoga teacher, and also a person who enjoys his life, who practices the detachment, who is very neutral during the situation, but still does whatever is required. Okay, so you can share this podcast with everyone you want to transform their life so that they can know the life of Karan, and they can also know the challenges, as well as anyone who is an artist, they can watch that. Okay, so you can also check out this podcast on Spotify after 24 hours of its release. So I would like to thank everyone at the last for joining, and especially the Karan sir for giving your time, effort, your energy. So I hope we will connect again. Thanks a lot. Thank you so much. थिंक यू फॉर